Vanparia sir, good morning sir. Good morning, sir. Is it audible? Yes sir. So all are here. You are audible sir. Please sir, you can share your screen. Okay. Meanwhile, I will just brief the students that very good morning to all the students. So this is the fourth day of our research and publication ethics coursework. And today we have one lecture, only one lecture before the lunch session. That will be delivered by Dr. Bhavesh Vanparia sir. Sir will be talking on like hands-on exercise on SPSS, AMOS review, and other tools which are very useful for our research. થેન્ક યુ સો મચ ભાવેશ વનપરિયા સર કે તમે મતલબ બિઝી શેડ્યુલ હતું તો પણ વિદ્યાર્થીઓની રિક્વેસ્ટને માન આપી અને સર એગ્રી થયા અને અમને ચાન્સ આપ્યો. સર પ્લીઝ તમે સ્ક્રીન શેર કરીને લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરો સર. હું રિક્વેસ્ટ કરીશ. Thank you, Gaurav sir. Honor is always mine to have interaction with all these researcher and budding knowledge seeker researcher of the Kutch University. So last time we had a discussion on sampling. I think you might be remember all this thing. Sorry, આપણે हिंदी में છે ને આપણે લેવાનું. Okay, sorry. तो हमने लास्ट टाइम कुछ सैम्पलिंग के बारे में कुछ बात किया था कि what is sampling, why we require to sampling, right? And today we are going to discuss the analysis part of our research. So before I start discussion on analysis part, or the sir is talking about the various software we are using for SPSS, MOS, R, Python, whatsoever the software we are using. तो कोई भी सॉफ्टवेयर हम जब यूज करते हैं उससे पहले उसकी बैकग्राउंड फिलोसॉफी हमें थोड़ी पता होनी चाहिए. Right? What all the software, right? Don't always go behind the software. कोई सॉफ्टवेयर के पीछे कभी मत भागिए क्योंकि software एक tools है. For example, earlier people were using Microsoft Excel, उसके बाद SPSS आया, उसके बाद MOS आया, उसके बाद R आया, अब हम Python यूज कर रहे हैं. लेकिन all the software giving the same answer, 1 + 1 = 2. कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे सबका आंसर सेम ही आने वाला है, राइट? केवल प्रेजेंटेशन में फर्क होगा, बट all these values are as it is given by all the software for the same data set. कोई भी डेटा सेट्स के साथ आप यूज करोगे तो हर सॉफ्टवेयर का आंसर सेम आने वाला है. तो कभी वो डिस्कशन में मत पड़ना कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करें तो हमारा रिसर्च अच्छा होगा. Right? Yes, you can have a save of the time and energy if you are well equipped with software, but don't rush behind or go behind with the software कि भाई हमें ये सॉफ्टवेयर आना ही चाहिए और इसके बगैर हमारा PhD नहीं हो सकता, इसके बगैर हमारा एनालिसिस नहीं हो सकता. It is not like that. Software are meant for the making our job easy, making job our smooth. तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं. अब मैं एक आपको एक if you sir, may I share my screen? Please sir, please. My screen is visible? Yes sir. So in last lecture we had a discussion on this slide, right? The sample or the story of Maggie. मैं कुछ कोशिश करूंगा कि आप उससे कनेक्ट रहे कि हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था मैगी का कि मैगी कंपनी बैन कैसे हुई. यू माइट बी हैव अ स्टोरी कि मैगी कितनी बड़ी ब्रांड है. मैंने कहा था कि मैगी अपने प्रॉफिट में से एक पूरी कंट्री का जीडीपी परचेस कर सकता है. तो इतनी बड़ी ब्रांड को हमने बैन कर दिया, राइट? बैन किस बेस पे किया कि उसका जो प्रोडक्ट था उसका छोटा सा सैंपल लिया हमने जो आपकी स्क्रीन पे है. उस छोटे से सैंपल के बेस पे हमने मैगी को बैन कर दिया.
अब द क्वेश्चन इज दैट इतना बोल्ड डिसीजन लेने का पावर कहाँ से आता है, इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने का जो हमें कॉन्फिडेंस कौन देता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. दिस इज द क्रक्स ऑफ टुडेज लेक्चर कि कोई भी ब्रॉड डिसीजन लेने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. और कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास 100% कभी नहीं होगी. इन आवर लाइफ, एक्चुअल लाइफ एज वेल, we never ever have a 100% information and then we can take a decision. तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी छोटी सी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे हम हमारा डिसीजन ले लेते हैं. अब ये तो हमारी डे टू डे की लाइफ हो गई, बट व्हेन यू आर टेकिंग द डिसीजन फॉर द मास ऑफ द पीपल और द करोड्स ऑफ द पीपल और बिलियंस ऑफ द पीपल और द डिसीजन इज अबाउट द करोड्स ऑफ रुपीज, तब उस टाइम पे हमें उस प्रिसीजन पे जाना पड़ता है कि जो डिसीजन ले रहे हैं, जो हमारे पास छोटी सी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे इतना बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, तो क्या वो इंफॉर्मेशन राइट वे में यूज हुई या नहीं, वो इंफॉर्मेशन हमने राइट तरीके से एनालिसिस की या नहीं, उस इंफॉर्मेशन में जो इन बिटवीन डेटा छुपा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है, वो पैटर्न जो आइडेंटिफाई किया आपने करनी है वो हुई कि नहीं. सो दिस ऑल दिस क्वेश्चंस नीड टू आंसर थ्रू सम एविडेंस, राइट. अब मैं आपको एक थोड़ा फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में ले जाता हूँ कि भी why we required the numbers, right, why we required the analysis. तो एक गैलीलियो ने एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट बोला है. गैलीलियो ने कहा कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स, राइट. अभी पूरी जो यूनिवर्स है जो कुदरत ने बनाई है वो पूरी यूनिवर्स की एक लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स. ये गैलीलियो ने कहा, मैं उसको प्रूव करके देता हूँ. Why everything is measured in number and why we are rushed behind the number, right? नंबर क्यों इतने इंपॉर्टेंट है. अब आपको मैं एक फिलोसॉफी बताऊं जो एंथ्रोपोलॉजी में भी लिखा गया है, एपिस्टेमोलॉजी में भी लिखा गया है. रिसर्च के ब्रांचेस पढ़ोगे तो एपिस्टेमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर इक्वली क्लेमिंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट કે हम जिस एरा में जी रहे हैं, આપણે જે યુગમાં જીવી રહ્યા છીએ ને, એ યુગ એટલે સમયકાળ, હરેક સમયકાળની એક પોતાની એક ઇમ્પ્રિન્ટ હોય છે, એક પોતાનું એક ઇફેક્ટ આપણા બ્રેઇન ઉપર, આપણા બિહેવિયર ઉપર, આપણા થિંકિંગ ઉપર ઓટોમેટિક આવતો હોય છે, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એક લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપું. જ્યારે તમે તમારા ફાધર, આઈ થિંક એવરીબડી આર ગુજરાતી ઓર આઈ શુડ સ્પીક ઇન હિન્દી એઝ વેલ. Which language is more comfortable to audience? Sir, Gujarati. कोई है हिंदी या गुजराती नहीं समझ, feel free. I'll manage. Sure, कोई those who cannot understand the Gujarati? Any single person or any single? Okay. तो हम बात कर रहे थे कि जैसे हम आपके पिताजी और आपके दादाजी को एक बात पूछोगे ना कि जैसे आपके पिताजी जो उसको कुछ बोलते थे कि भाई ये नहीं करना है, यहाँ पे नहीं जाना है, इसको टच नहीं करना है, ये नहीं खाना है, तो वो लोग क्या करते थे, सिंपली उस चीज को मानते थे और दे ओबे एंड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर पेरेंट्स, राइट. वो उसके पिताजी का कहना सब कुछ मानते थे. अभी आज वही बात यदि आपकी फैमिली में कोई 4 साल का छोटा बच्चा भी हो ना, उसको बोलना कि ये चीज नहीं करनी है, ये नहीं खाना है, यहाँ पे नहीं जाना है, ये नहीं कर बोलना है, तो इमीडिएट क्वेश्चंस क्या आएगा हमारे सामने, वो बोलेगा क्यों नहीं करना है. अभी देखो, जो वही बात आपके दादाजी आपके पिताजी को कहते थे तो वो क्वेश्चन आपके पिताजी नहीं करते थे, वो आज 4 साल का बच्चा कर रहा है. अभी वो 4 साल का बच्चा कहाँ सीखने गया सारी चीजें कि भाई जब भी आपको कुछ ऐसा बोला जाए ना तब आपको क्वेश्चन करना है. ना ही उसने स्कूल में गया है, ना ही उसके कोई दोस्त ने सिखाया है, ना ही पेरेंट्स ने सिखाया है. तो फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन कम्स टू दिस किड्स, ये बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कहाँ से, मतलब वो जो क्वेश्चन आया कहाँ से, उसका रीजन है कि वी ऑल आर लिविंग इन द एरा ऑफ लॉजिटिविटी. उसको उस युग का नाम है लॉजिटिविटी युग. मतलब हम जिस काल समय में हम रह रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं, उस समय का नाम है लॉजिटिविटी. मतलब सबको एक तर्क चाहिए, एक तार्किक युग में हम जी रहे हैं.
मतलब 4 साल के बच्चों को भी एक तर्क चाहिए कि भाई मुझे ऐसा क्यों करना है, मुझे ऐसा क्यों नहीं करना है, राइट? तो वो लॉजिक, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉजिक आएगा कहाँ से? आप कोई भी पॉलिसी बनाओ या कोई भी आप स्ट्रेटेजी बनाओ या कोई भी आप क्लेम करते हो या कोई भी आप डिसीजन लेते हो, उसके पीछे हर लोग आपको एक लॉजिक मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अपनी कॉलेज का यूनिफॉर्म का कलर डिजाइन करते हो, राइट? तो आपको कलर अपने प्रिंसिपल या अपने ट्रस्टी या मैनेजमेंट को प्रपोज करोगे, सर दिस कुड बी द ड्रेस कोड ऑफ आवर स्टूडेंट्स, तो पूछेंगे यही कलर क्यों, यही डिजाइन क्यों, यही पैटर्न क्यों? तो हर क्वेश्चन के पीछे आज हमें एक आंसर चाहिए, वो क्वेश्चन है क्यों, व्हाई, राइट? तो ये व्हाई क्वेश्चन का आंसर हम कैसे जनरेट करेंगे? हमारे रिसर्च के थ्रू, राइट? तो दिस एरा इज कॉल्ड एरा ऑफ लॉजिटिविटी। मतलब अब ये क्वेश्चन तो हमारे सामने समझ में आ गया कि भाई हमें हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक लेना पड़ेगा और लॉजिक हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो लॉजिक कैसे जनरेट होगा? मैं आपको क्वेश्चन एक सिंपल स्टेटमेंट बताऊं कि आप किसी को ऐसा कहोगे कि भाई माय सन इज वेरी इंटेलेक्चुअल, राइट? स्टेटमेंट नंबर 1। और आप कहोगे माय सन स्कोर 93% इन अ बोर्ड एग्जाम, विच इज मोर कन्विंसिंग? कौन सा स्टेटमेंट कन्विंस करने के लिए अच्छा है सामने वाले को, राइट? जो वो माने कि नहीं इसका सही, इसका बेटा इंटेलेक्चुअल है, राइट? माय सन इज वेरी इंटेलेक्चुअल इज गुड वन, और माय सन स्कोर 93% या 94% इज इन अ बोर्ड एग्जाम। कौन से स्टेटमेंट से सामने वाला कन्विंस हो जाएगा, राइट? तो आप समझ सकते हो कि नंबर की वैल्यूज हमारे लाइफ में क्या है, राइट? कि नंबर इज द ओनली ऑप्शन और वे वेयर वी हैव टू फिगर आउट एवरी लॉजिक इन द लाइफ। देखो, कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है जिसके पीछे हम नंबर जनरेट नहीं कर सकते। इवन देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम द लैंग्वेज बैकग्राउंड इन आवर ग्रुप, राइट? काफी लोग हिंदी से है, गुजराती से भी होंगे, लिटरेचर से भी होंगे, राइट? सो मैं उसको एक एक्सरसाइज देता हूँ कि जस्ट गो इनटू द रूट हाउ लैंग्वेज डेवलप्स, राइट? लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ, राइट? सेकंड क्वेश्चन है कि लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स है उसका शेप है, लाइक हम गुजराती में आपने क आम लखीए, हिंदी में क आपने आम लखीए, राइट? तो ये जो सारे शेप है लैंग्वेज के, जो सारे जो उसकी डिजाइन्स बनी, जेनो आकार बन्यो, આપણા જે अल्फाबेट्स ना जे अक्षरोનો आकार છે, एक કોઈને સપનામાં આવ્યો હતો કે એની પાછળ भी कोई साइंस છે, राइट? तो लैंग्वेज के लोग उसके पीछे भी रिसर्च कर सकते हैं, बट इन अ नटसेल मैं समराइज वे में बताऊं कि एवरी लैंग्वेज, एवरी लिटरेचर, एवरी फिनोमिना हैव अ ओरिएंटेशन इन द नंबर। आप ये गैलीलियो ने ऐसा स्टेटमेंट ऐसे नहीं बोला है कि गॉड हैज रिटन यूनिवर्स इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? मैं आपके सामने कुछ आपको मोर अच्छी तरह से कन्विंस करने के लिए मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं YouTube पे सर्च करता हूँ आपको। आपको दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे? Yes, Can you sir. see? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आप देखो, अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि कुदरत में जितनी भी नेचर है, आप उसको कोई भी दुनिया का कोई भी फ्लावर ले लो, बटरफ्लाई ले लो, राइट? आप कोई भी गैलेक्सी ले लो या कोई भी चीज लोगे, यू जस्ट हैव अ लुक, सारी चीजों के पीछे एक मैथमेटिकल इक्वेशन छुपा हुआ है। वो सनफ्लावर हो, रोज का फ्लावर हो, या कोई भी चीज हो इस यूनिवर्स में, उसके पीछे एक परफेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन है। यू कैन ऑल्सो काउंट एट योर होम, राइट? कि उस रेशियो का नाम है, उस इक्वेशन का नाम है गोल्डन रेशियो, राइट? जैसे आपने वो मूवी देखी होगी सुपर 30, ऋतिक रोशन की, उसमें वो ऋतिक रोशन कहता है कि तेरे चेहरे पे फी नहीं है। फी मतलब फीटा, फीटा मतलब अल्फा, अल्फा मतलब तेरे चेहरे पे वो पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब ब्यूटी इज वेरी सब्जेक्टिव फिनोमिना, वो उस ब्यूटी को भी हम मैथमेटिक्स के इक्वेशन में मेजर करते हैं,
right? So everything is in number. Let me, I'll show you another example. मैं आपको और उसी का बताऊं कि आप जैसे गोल्डन रेशियो इन आप आर्किटेक्चर करो, राइट? आप देखो कि दुनिया का जितने भी अच्छे आर्किटेक्चर है, वो ताजमहल हो गया, गिजा का पिरामिड हो गया, ग्रीस की एम्पायर हो गई, एफिल टावर हो गया, दुबई का कोई भी इमारत ले लो आप, everything, every architecture is also follow the perfect equation of golden ratio. Beyond that, I also show you some commercial use of mathematics. कि आप देखो कंपनी के लोगोस है, जैसे एप्पल का लोगो हो गया, पेप्सी का लोगो हो गया, ट्विटर का लोगो हो गया, राइट, गूगल का इटसेल्फ लोगो हो गया, राइट, ऑल दिस लोगो, टोयोटा का लोगो हो गया। तो ये सारे लोगो जो है वो भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन से डिजाइन किए गए। ये कोई पर्टिकुलरली आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं है कि किसके दिमाग में कोई ऐसा पिक्चर आया और उसने वो पिक्चर बना के लोगो के फॉर्म में डाल दिया, राइट? तो हर चीज में कहीं ना कहीं हम एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को, मैथमेटिक्स को या नंबर को साथ में लेके चलते हैं। उससे भी आगे मैं आपको बताऊं कि आवर बॉडी इज आल्सो फॉलो द एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी कभी आपने अपने कान को ऑब्जर्व किया है कि आपका कान जो है, आपके कान की जो बुट्टी है, राइट, आपके कान की जो बुट्टी है ये वाली, उसका ऐसा टिपिकल स्ट्रक्चर भगवान ने क्यों बनाया? कभी आपने सोचा कि इस कान में आप देखो इतने झिकझैक खांचे दिए हैं कि આપણે આંગળી પણ ન જાય, મેલ કાઢવો હોય તો પણ એવું થાય, તો why this kind of structure is उसका यूज भी क्या है, राइट? चश्मा पहनने के अलावा कोई यूज भी नहीं, चश्मा पहनने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है? सिंपल भी दे सकते थे ना। लेकिन देखो कि एवरी पार्ट ऑफ योर ह्यूमन बॉडी, it may be a face, it may be your ears, it may be your eyes, legs, your entire body follow the perfect equation of गोल्डन रेशियो। अब मोनालिसा है, देखो मोनालिसा पिक्चर में क्या, ना ही कुछ ग्लैमर है, ना ही कुछ है ना ये सब, फिर भी व्हाई इट इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर। अभी आप हाथ देखो, राइट, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि इट्स फॉलो एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? सो इसी तरह से हाउ वी आर यूजिंग द नंबर इन अवर एवरीडे एस्पेक्ट। सो व्हाट आई मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ कि हर चीज का एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। Whether we like or dislike, we don't have any choice to prove anything without, it's very difficult to prove without use of analytics or without use of particular numbers. तो हम आज इस जर्नी की जो बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा बैकग्राउंड, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बताई कि नंबर एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम पूरी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ एविडेंस। क्योंकि आज कोई 4 साल का बच्चा यदि आपसे लॉजिक मांगता है, एविडेंस मांगता है, तो आप यू कैन थिंक अबाउट कि जब आप इतना बड़ा रिसर्च प्रोड्यूस करोगे और आप ऐसा क्लेम करोगे कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टॉक मार्केट एंड इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड टुडे, राइट? तो यू हैव टू प्रूव इट आउट, राइट? तो आपको हर चीज का एक एविडेंस देना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ स्टॉक मार्केट एंड द प्राइस ऑफ गोल्ड, राइट? तो ये आप कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो या कोई प्रेडिक्शन करते हो कि भाई इन नियर फ्यूचर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बी गोज अप, ऑन व्हाट बेसिस यू आर क्लेमिंग, राइट? तो जब छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम सैंपल बोलते हैं और सैंपल के बेस पे हम कुछ क्लेम करते हैं या कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, उस टाइम पे, राइट, वी रिक्वायर द यूज ऑफ एनालिटिक्स और यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, right, for making our claim in a better way. अब जब हम क्लेम करते हैं तब हम दो चीज के बारे में हम सोचते हैं। Right, when we are claiming, then means we are using the some number मतलब 0 to 9, everything should be converted into 0 to 9, right? How we can convert, you can learn this all these techniques in a, might be in a coursework, ये आपका प्री PhD कोर्सवर्क है शायद, तो आपको उतना डीप में नहीं हो, लेकिन आप जब अपना PhD कोर्सवर्क करोगे तब एब्सोल्यूट जो प्योर साइंस में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया या बायोलॉजी हो गया या बायो साइंस हो गया या केमिस्ट्री हो गया,
ये सारी फील्ड में तो यू कैन जनरेट नंबर डायरेक्टली। आप कोई लिक्विड को लेते हो, उसके नंबर्स जनरेट होते हैं, उसके पैरामीटर्स डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीज तो वेरी बाय डिफॉल्ट प्योर साइंस की फील्ड में है। सोशल साइंस की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, तो उसमें आपको नंबर्स को जनरेट करने पड़ते हैं, क्योंकि वो सारा एक सब्जेक्टिव फिनोमिना होता है और सब्जेक्टिव फिनोमिना को आपको उसको ऑब्जेक्टिव फिनोमिना में डालना पड़ता है। अभी आपके सामने एक स्लाइड है जिसका नाम है बिजनेस एनालिटिक्स, मतलब वो एनालिटिक्स की एक पूरी स्लाइड है, राइट। ये स्लाइड जिसको समझ में आ जाती है, मतलब ये स्लाइड जिसको रन करना आ जाता है, ही इज कॉल्ड द डेटा साइंटिस्ट, राइट। वो उसको डेटा साइंटिस्ट हम बोलते हैं कि ये सारी टूल्स है आपके सामने जो है ना, वन सैंपल, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, रिग्रेशन, अनोवा, फैक्टर एनालिसिस, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, ये सारी टेक्निक्स है। ये सारी टेक्निक की नॉलेज यदि हमें आ जाती है तो हम उसको डेटा साइंटिस्ट की से हम उसको पहचान सकते हैं। अब एक वापस मैं थोड़ा अपना फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में आ जाऊं, बिकॉज यू नो आई ऑलवेज यूज फिलोसॉफी व्हाइल यू आर यूजिंग एनीथिंग, बिकॉज यू हैव टू कन्विंस फर्स्ट। आपको अपने आप से कन्विंस होना है, उसके बाद सारी चीजों को यूज करना आप स्टार्ट करें, क्योंकि यदि आप कन्विंस नहीं हो तो आपको सूनर और लेटर ये सारी चीजें एक बर्डन लगेगी, राइट। ये सारी चीजें आपको एक बोरिंग लगेगी यदि आप कन्विंस नहीं हो कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, राइट। एक फिलोसॉफिकल स्टैंड ऐसा है which cannot be measured does not exist। ऐसा कहा जाता है कि जिसको हम माप नहीं सकते उसका अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा फिलोसॉफी ने माना है। तो हम क्या कहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी मेजरेबल। हमें सब कुछ चीजें मापनी पड़ेगी, वो कोई भी चीज हो, इवन एक्सट्रीम फिनोमिना क्यों ना सब्जेक्टिव फिनोमिना हो, उसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी कोई जो रिसर्च होती है, दो अप्रोच से रिसर्च करता है। फर्स्ट इज इंटरप्रेटिव अप्रोच होता है, जिसको हम क्वालिटेटिव अप्रोच बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, what is the relationship between the literature written by the Ved Vyas and the literature written by the Kalidas, right? We are doing the research on some phenomena. What is the literature available regarding third gender in our ancient literature? कि थर्ड जेंडर के बारे में हमारे पुराणों में क्या क्या अवेलेबल लिटरेचर है, उसका आप कंपाइलेशन करते हो, रिसर्च करते हो। या यू आर ऑल्सो मे बी डूइंग the poet written by some author, or you know novels written by some author, तो उस पे आप रिसर्च करते हो। so this is called the qualitative phenomena, which is called the interpretive approach, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, कि जिसमें हम केवल लिटरेचर के बेस पे, डायलॉग्स के बेस पे, रिटन डिस्क्रिप्शन के बेस पे हम हमारा रिसर्च करते हैं। और एक अप्रोच रिसर्च का होता है, पॉजिटिविस्ट अप्रोच होता है। इट मीन इट इज अ प्योर क्वांटिटेटिव, राइट। जैसे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पीपल, कॉमर्स स्टूडेंट, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, वो सारे जो लोग हैं वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच से रिसर्च करते हैं। यू नो व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, क्योंकि आप जब पीएचडी करते हो हमेशा याद रखो कि पीएचडी एक रिसर्च करने का लाइसेंस है, राइट। तो जैसे आपके पास यदि कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसमें सब आपके पास टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसमें कहीं लिखा रहता है कि ये जो लाइसेंस है आपको एक्टिवा चलाने के लिए दिया गया है, ये जो लाइसेंस है आपको एक होंडा की बाइक चलाने के लिए दिया गया है। मतलब उसमें क्या लिखा रहता है कि यू आर एलिजिबल टू राइड एनी टू व्हीलर, ठीक है। तो पीएचडी की डिग्री एक ऐसी है, पीएचडी डिग्री देखो, आप जब को डिग्री मिलेगी ना आप सबको, तो उसमें आपका सब्जेक्ट का नाम ही नहीं लिखा होगा। आप देखना किसी की पीएचडी की डिग्री, वहां पे लिखो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, नथिंग एल्स, कि आपकी डिग्री में कहीं भी वो मेंशन नहीं होगा, उसका टाइटल है पीएचडी। फिर भले आप ब्रैकेट में लिखते हो कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस, केमिस्ट्री, जो भी है, मतलब इट इज अ लाइसेंस ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च। जब आप रिसर्चर की पोजीशन में आ जाते हो, जब आप रिसर्चर बनते हो, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि मुझे केवल मेरे सब्जेक्ट के बारे में ही एक्सपर्टाइज है, मेरे सब्जेक्ट के बारे में ही पता है। Research is a license, right? And when you have a license, you have to know and you have to operate just like a new। कोई भी टू व्हीलर्स नया आता है तो आपको चलाना आ जाता है एक दो ट्राई में। तो ये सारी चीजें हमें क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि we are in the process of to become being a researcher। एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच पे हम बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव अप्रोच एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है। मतलब हर चीज को हम नंबर में मापते हैं, हर चीज को हम एक नंबर असाइन करते हैं, उसके बेस पे हम उस नंबर के पीछे छुपी एक पैटर्न को मापते हैं। तो ये सारी चीजों जो है उसको बोला जाता है पॉजिटिविस्ट अप्रोच ऑफ द रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ द रिसर्च। जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं ना,
तब एक क्वेश्चंस दिमाग में आता है कि भाई चलो आपने कहा कि भाई एवरीथिंग शुड बी, देखो आप फ्लो में रहना, मैंने स्टार्टिंग किया था डिस्कशन कि व्हाई वी रिक्वायर द नंबर, बिकॉज वी ऑल आर लिविंग इन द एरा ऑफ लॉजिटिविटी। लॉजिक के लिए हमें कुछ एविडेंस चाहिए, एविडेंस डेवलप करने के लिए हमें कुछ नंबर्स चाहिए, बिकॉज नंबर से हम इजीली किसी को कन्विंस कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट पुट अप कर सकते हैं। नंबर जनरेट करने हैं तो कैसे करेंगे? तो अब हम नंबर कैसे जनरेट करेंगे? तो जिस चीज को हम नंबर दे सकते हैं और जो नंबर देते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, राइट। जैसे हम काफी बार हम बात करते हैं कि भाई आपने पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में भी काफी सारा रिसर्च के बारे में पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल। ये वेरिएबल है क्या चीज, वो आप थोड़ा डिस्कस करते हैं, वेरिएबल क्या है। तो ये सारी चीजें जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक हम हमारे रिसर्च के बारे में, उसका एनालिसिस के बारे में हम श्योर नहीं हो पाएंगे या क्लियर नहीं हो पाएंगे, राइट। तो रिसर्च क्या चीज है, सॉरी वेरिएबल क्या चीज है कि वेरिएबल एक ऐसा फिनोमिना है कि द वर्ड कम फ्रॉम वेरी, वेरिएबल वर्ड्स कम फ्रॉम वेरी। वेरी मतलब जो चेंज होता रहता है, द वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट। ये तीन चीज हम जो चेंज होती है उसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट, योर वेट, माई वेट इज चेंजिंग, वेट इज changing from person to person. Temperature is changing from place to place, right? So ये सारी चीजें जो है वो हमें उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। The change of phenomena which is changing from person to person, place to place and time to time, right? The feelings, or we can say the temperature in the morning, afternoon and the evening changing. Temperature of Bhuj and Surat is different, right? So the satisfaction of one customer from the same restaurant is different from the customer of the same restaurant, different customer of the same restaurant. तो दो ही कस्टमर एक ही रेस्टोरेंट की, दोनों के सेटिस्फेक्शन अलग हो गए। तो ये सारे जो फिनोमिना है वो सारे होते हैं वेरिएबल्स, राइट। तो जो चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होते हैं, तो वो वेरिएबल हमें समझने की वो वेरिएबल कितने टाइप्स के हो सकते हैं और वो डेटा जब हम करते हो तो कितने टाइप के हम वेरिएबल को किस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। अब काफी सारे वो है, उसमें मैं ब्रॉडली आपको बताऊं कि वेरिएबल की दो परिभाषा है, राइट, जिसको हम मेजरमेंट स्केल भी बोलते हैं, राइट। तो आपको मैं थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं। आप आई डोंट नो आप ये डिस्कशन हो चुका है पहले? कैन एनीबॉडी कंफर्म? आई शुड नॉट रिपीट टाइप्स ऑफ स्केल। नो सर, नहीं हुआ है सर। नो बाकी है सर। तो कोई भी आप एनालिसिस करते हो जब भी, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप जिस बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हो या डेटा जनरेट कर रहे हो कौन से टाइप का स्केल है। स्केल मतलब जिस पर्टिकुलर मेजरमेंट टेप पे हम उसको मापते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप दूध लेने जाते हो तो उसको आप बोलते हो आप 2 लीटर दूध दे दो। बैंक में पैसा उठाने जाते हो तो बोले कि 5000 रुपीज दे दो, राइट। आप जब ट्रैवल करते हो तो बोलते हो कि 50 किलोमीटर यहाँ से ही है, तो ये किलोग्राम हो गया, मीटर्स हो गया, रुपीस हो गया, उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, राइट, वो किस चीज में मापा जाना चाहिए उसको बोलते हैं मेजरमेंट स्केलिंग, राइट, सिंपल फॉर्म में। अब देखो 0 to 9 के नंबर जो है वो हमें एज सच दिखते तो सेम ही है, ऑल 0, ऑल 1, ऑल 2। आपको मैं एक चीज सिंपल वे में बताओ कि आपके पास 1 रुपीज है, आपका घर नंबर 1 है और आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हो, तो क्या तीनों 1 सेम है? लिखा जाएगा 1, घर नंबर 1, रुपीज 1 एंड रैंक इन यूनिवर्सिटी 1, राइट। सो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द नंबर। अब देखो अब इसकी जरूरत क्यों है हमें? ये सारे चीजों के में जो डिफरेंस है उस सारे चीजों के डिफरेंस को समझने की जरूरत क्यों है? क्योंकि any software you are going to use, it may be Excel, it may be SPSS, it may be any software, this particular machine और इस कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है, right? He could not understand कि ये तीनों 1 सेम नहीं है। घर नंबर 1, रुपीज 1 एंड द रैंक इन द यूनिवर्सिटी, तीनों भले दिखते 1 है
लेकिन तीनों वन सेम नहीं है। तो ये सारी जो क्लैरिफिकेशन है वो रिसर्चर को पहले अपने पास होनी है और उसके बाद उस तरह से उस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई ये घर नंबर 1 है, तो घर नंबर 1 प्लस घर नंबर 2 को हम प्लस नहीं कर सकते। ये ₹1 है तो ₹1 और ₹2 को प्लस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी रैंक नंबर 1 इज नॉट इक्वल और टू द यूनिवर्सिटी नंबर 2। तो ये सारी जो डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर है वो हमें पता होना चाहिए जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर को या कोई भी चीज को हम यूज करते हैं, राइट। तो एक 4 कैटेगरीज है नंबर की। आपको सारी चीजें मैं आई मेक इट एज सिंपल एज इट, जितना हो सकेगा मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ डेटा, इट इज कॉल्ड नॉमिनल नंबर, राइट, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल और नंबर्स किसको कहा जाता है कि द नंबर विच इज ओनली गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन। आई रिपीट, number is assigned or number is given to anything for identification. उसकी पहचान के लिए એમની ઓળખ માટે કોઈ જો નંબર આપવામાં આવે તો આપણે એને નોમિનલ નંબર કહેવાશે। એ હશે 0 થી 9 ની વચ્ચે જ હશે, પણ એ માત્ર ને માત્ર આપવામાં આવે છે એની ઓળખ માટે। ફોર એક્ઝામ્પલ, the roll number of your student in your classroom or your enrollment number of PhD in the university, right? તો આ નંબર શા માટે છે? એની કોઈ વેલ્યુઝ નથી, right? This number does not indicate anything. Suppose my bike number is 3959. ચાલો એ બાઇક વિશે તમે શું કહી શકશો? એ બાઇકની વેલ્યુ શું હશે? એ બાઇકનો કલર કયો હશે? બે બાઇકની માઇલેજ કેટલી હશે? એ બાઇકની એન્જિન કેપેસિટી શું હશે? એ બાઇક કેટલા સીટરની હશે? એ બાઇક કઈ બ્રાન્ડની હશે? is not indicating anything. તો બાઇકનો નંબર શું કામ આપવામાં આવ્યો? રાઈટ, બાઇકનો નંબર એટલા માટે આપવામાં આવ્યો કે આપણે બાઇકને એની ઓળખ આપી કે આ નંબરની બાઇક છે તો આ બાઈની હશે, બસ। આરટીઓ માં કોઈ એક્સિડન્ટ થાય તો તમારા નામની કમ્પ્લેન લખાવી હોય તો કયા નંબર લખાય કે આટલા નંબરની બાઇકે મને एक्सीडेंट કરીને ગયું છે। तो दिस ऑल नंबर्स आर कॉल्ड नॉमिनल नंबर्स। आप मुझे बता सकते हैं, ऑडियंस में 100 लोग हैं, कि ऐसे कौन कौन से नंबर है विच इज कॉल्ड नॉमिनल नंबर विथ यू इन योर पॉकेट, जिसको आप अपने साथ में लेके घूमते हो एवरी डे? ऐसे कोई नंबर है आपके पास? मोबाइल नंबर वेरी गुड। उसके बाद आधार कार्ड, पान कार्ड। वेरी गुड। और पैसों के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो, हाँ, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर, सर यूनिक आईडी, यूनिक आईडी, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ATM number, एक number, एटीएम कार्ड नंबर, अकाउंट्स नंबर, कार और बाइक के सीरियल नंबर, बाइक नंबर, कार नंबर, house number, सीरीज ऑफ वेरी गुड। नोट, हाउस नंबर, राइट, તમારા ઘર નંબર, ફ્લેટ નંબર સોસાયટીમાં આપવામાં આવે છે, રાઈટ, વેરી ગુડ, રાઈટ। આધાર કાર્ડ નંબર, પાન કાર્ડ નંબર, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ નંબર, જે તમારા પોકેટ્સમાં તમે રાખતા જ હો છો ને, રાઈટ। નંબર્સ રિટન ઓન યોર કરન્સી, તમારી નોટ્સ ઉપર જે નંબર લખેલા હોય, રાઈટ, એ શું કામ આપવામાં આવે? તો ઓલ ધીસ નંબર્સ આર નોમિનલ નંબર। ઇટ મીન્સ નોમિનલ નંબર માં શું હોય કે નંબરનો કોઈ યુઝ જ નથી। યુ કાન્ટ multiply के roll number 2 multiply by roll number 3 equal to roll number 12, right? You can't say anything like this way. You can't say house number 29 minus house number 20 equal to house number 9. તમે કોઈ બી arithmetic mathematical operation તમે ન કરી શકો। so એ બધા જ નંબરને આપણે નોમિનલ નંબર તરીકે ઓળખીએ છીએ। કે સપોઝ એવા કોઈ નંબર્સ તમારી પાસે છે, રાઈટ, તો તમે કયું એનાલિસિસ કરશો? રાઈટ, તમે કયો એનાલિસિસ કરશો? સી, જો તમે સોફ્ટવેર ને આપશો ને એક્સેલ ને, એક કોલમમાં 1 લખજો, બીજા સેલમાં 2 લખજો અને ત્રીજા સેલમાં લખજો 1 + 2 ડિવાઇડેડ બાય એની એવરેજ કાઢશો તો આવશે 1.5, રાઈટ, એક્સેલ કરી આપશે તમને। હવે પણ એ 1 શું છે ખબર છે? 1 is stand for male and 2 stand for female। હવે 1 + 2 ની એવરેજ કરો તો કેટલી થાય? 1.5। So where is a 1.5 gender in your data set, right? It means software does not have the brain. એની પાસે એ નથી, એને તમે gender ની એવરેજ કાઢી નાખો
તો એ બધા જેન્ડરને ટોટલ કરીને ડિવાઇડેડ બાય જેટલા જેન્ડર હશે એને ડિવાઈડ કરીને નંબર આપી દે કે આટલું આ તમારી એવરેજ, રાઈટ? તમે કહેશો ને કે ભાઈ મારી સોસાયટીમાં મકાનની એવરેજ શું છે, તો બધા મકાનનો સરવાળો કરશે ડિવાઇડેડ બાય જેટલા નંબર જેટલા ઘર હશે કરશે કે તમારા સોસાયટીના ઘરની એવરેજ આ છે. એનું મિનિંગ શું? ઇટ ડઝ નોટ ઇન્ડિકેટ એની સેન્સ, રાઈટ? એટલે આ વસ્તુ સમજવા જેવી છે. કોઈ બી તમે નંબરને યુઝ કરતા હો તો એ નંબર ઉપર કયા પ્રકારનું એરિથમેટિક ઓપરેશન કે મેથેમેટિકલ ઓપરેશન કરવું કે નહીં, રાઈટ? એ ડિપેન્ડ કરે કયા ટાઈપ્સના ડેટા તમારી પાસે છે. સો ફર્સ્ટ કેટેગરી is called nominal data, right? Numbers. Any questions in nominal data? Right? Any queries? Right? Just you raise your hand. We entertain your questions as of this point of time only. But second types of data આવે. This types of data is called interval data. Sorry, ordinal data. Ordinal data means the some number is given to decide the order. આપણે એવા નંબર આપીએ છીએ 0 to 9 ની વચ્ચે જ નંબર આપીએ છીએ, પણ એ નંબર છે એ પર્ટિક્યુલર ઓર્ડરની સિક્વન્સ નક્કી કરે. એ ગ્રેટર ધેન બી હોઈ શકે અને લેસ ધેન પણ હોઈ શકે, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ ranker 1, ranker 2, ranker 3, ranker 4, ranker 5, તો top 10 rankers of the college or university or the classroom આપણે આપીએ છીએ, રાઈટ? તો શું કરે કે ભાઈ એક ઓર્ડર નક્કી કરે, રાઈટ? સો this is called ordinal data. Top 10 players, tennis player of the world, top 10 ICC cricket players, or top 10 cricket team of the world. તો એ શું કરે કે એ રેન્ક આપે, ફર્સ્ટ રેન્ક, સેકન્ડ રેન્ક, થર્ડ રેન્ક, ફોર્થ રેન્ક. સો ધીસ નંબર વિલ ડિસાઇડ ધ ઓર્ડર. નોમિનલ ડેટામાં શું હતું કે સપોઝ મારો નંબર રોલ નંબર 10 છે, આવતા વર્ષે તમે મારો રોલ નંબર 8 કરો કે 12 કરો, મને કોઈ ફરક પડવાનો નથી, રાઈટ? ઇફ સપોઝ ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તમારો પાન કાર્ડ નંબર ચેન્જ કરી નાખે તો તમને કોઈ ફરક પડવાનો નથી, તમારી લાઈફમાં કોઈ ચેન્જીસ આવવાનો નથી, રાઈટ? તમારા સોસાયટીના નંબર 3 ડિજિટમાંથી 2 ડિજિટ ના થાય તો બી તમારા ઘરના વેલ્યુએશનમાં કે ઘરના કલરમાં કે ઘરની સાઇઝમાં કોઈ ફરક આવવાનો નથી. પણ ઇફ ઇટ ઇઝ અ ઓર્ડિનલ નંબર, તો તમે કહેશો કે ભાઈ તું તારો સેકન્ડ રેન્ક છે ને તો તારો ફર્સ્ટ રેન્ક મને આપી દે અને મારો સેકન્ડ રેન્ક તું લઈ લે, right? So once the number is assigned for to decide the particular order, it means you have to stick with this number. ये order एक particular ये descending order में अपन हो सके, ये ascending order में अपन हो सके. So हम उसको बोलते हैं ordinal number. उसके बाद आता है interval number. अब interval number है वो क्या करता है कि इंटरनल नंबर नॉमिनल नंबर की प्रॉपर्टी भी कैरी करता है, ऑर्डिनल की भी प्रॉपर्टी कैरी करता है, एंड साथ में वो दोनों के बीच, दो नंबर के बीच में जो इंटरवल है, दो नंबर के बीच में जो गैप है उसको इक्वल करता है. जैसे आप ऑर्डिनल नंबर में क्या होगा, आपने दिया कि भाई तेरा फर्स्ट रैंक है क्लास में, तेरे परसेंटेज है 99, तेरा सेकंड रोल नंबर रैंक है क्लास में, तेरे परसेंटेज है 97, तेरा थर्ड रोल नंबर है, तेरे परसेंटेज 90. अब देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों के बीच में जो गैप है, फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक के बीच में डिफरेंस है 2% का, 2%, 99 to 97. सेकंड एंड थर्ड के बीच में डिफरेंस है 7% का, 97 to 90. तो इंटरवल नंबर क्या करता है कि वो चीज को न्यूट्रल कर देता है. वो चीज कब काम में आती है, जब हम किसी वेरी सब्जेक्टिव चीज को हम नंबर देने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, तो जब आपने ब्रेकफास्ट किया तो हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विथ योर ब्रेकफास्ट, तो आप उसको नंबर कैसे दोगे, राइट? कि मैं 95% सेटिस्फाइड हूँ या 20% हूँ या 35% हूँ, उसका कोई लॉजिक तो बनता नहीं है. तो सोशल साइंटिस्ट ने क्या किया, सोशल साइंटिस्ट ने एक चीज की फिक्स. माय स्लाइड इज विजिबल और इट इज No, sir, it is not visible. No, sir. No, sir, it is No, not sir. visible. I think something is. You can't.
Visible, sir, visible. सोशल साइंटिस्ट ने कहा कि भाई हम चलो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है, ये सारे सब्जेक्ट में तो क्या होता है कि दे आर डीलिंग विद हाईली स्ट्रेंज फिनोमिना. फॉर एग्जांपल स्ट्रेस लेवल, उसको कैसे नंबर दोगे? हाउ मच स्ट्रेस यू आर हैविंग, राइट? हाउ यू क्वांटिफाई योर स्ट्रेस कि मैं 20% स्ट्रेस में हूँ, 30% स्ट्रेस में हूँ, 70% रेट में हूँ. तो हम क्या करते हैं, उस स्ट्रेस को मापने की कोशिश करते हैं, राइट? तो उस टाइम पे सोशल साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया, दिस इज कॉल्ड द इंटरवल स्केल. जैसे मैं ब्रेकफास्ट की बात कर रहा था कि हाउ मच यू सेटिस्फाइड विद योर ब्रेकफास्ट, तो हम उसको नंबर तो नहीं दे सकते, तो उसको हम कैसे मापते हैं कि भाई आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय 2 days ब्रेकफास्ट, स्ट्रांगली अग्री विद द स्टेटमेंट, अग्री विद द स्टेटमेंट, न्यूट्रल विद द स्टेटमेंट, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री, राइट? जब हम मोबाइल परचेस की जब मार्केट सर्वे करते हैं कि विच एट्रीब्यूट्स ऑफ मोबाइल फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल फोन में कौन सा ऐसा फीचर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए, तो हम कैसे मापे, उसको नंबर कैसे देंगे? तो मैं कहता हूँ कैमरा वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट मतलब उसको 5, इंपॉर्टेंट मतलब 4, न्यूट्रल मतलब 3, नॉट इंपॉर्टेंट मतलब 2 एंड नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट मतलब 1. It means how we assign my importance regarding particular features of the product and उसको मैं नंबर में कन्वर्ट करता हूँ. तो हमने ऐसे सारे स्केल बना दिए, राइट? एक्सट्रीमली हैप्पी, हैप्पी, न्यूट्रल, नॉट हैप्पी, सैड. तो हम क्या क्या, हाउ इज योर मूड टुडे, नंबर दो मुझे. तो आप कैसे नंबर दोगे, हाउ इज योर मूड टुडे? तो मैं बोला कि आप 5 है, वेरी हैप्पी, हैप्पी, न्यूट्रल, राइट, समवॉट, नॉट एट ऑल इन अ मूड. तो हम 5 दे दिया, 5 4 3 2 1. तो ये सारे जो स्केल बनाए गए सोशल साइंटिस्ट में पर्टिकुलरली, उसको हम इंटरवल स्केल बोलते हैं. और उसके बाद में 4th कैटेगरी ऑफ स्केल होता है, वो होता है रेशियो स्केल. मतलब देखो, नॉमिनल नंबर विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0. हमेशा समझना, नॉमिनल नंबर आप 0, कभी देखा आपका रोल नंबर 0 है, घर का नंबर 0 है, बाइक के चारों नंबर 0 है, सब अकाउंट नंबर में सब 0 है, मोबाइल नंबर में सब 0 है. नॉमिनल नंबर विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम 0. इंटरवल नंबर भी 0 से कभी स्टार्ट नहीं होता है. आपने कभी देखा कि भाई ऑर्डिनल नंबर के 0 रैंक का स्टूडेंट, राइट, उसका ऑर्डर कौन सा आएगा, उसके लिए 0 मार्क्स भी होंगे ना, तो उसका 0 नंबर दिया जाएगा. मतलब लास्ट का नंबर क्या होगा, समझो आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है और 100 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट के मार्क्स 0 है, तो उसका कौन सा रैंक दोगे आप? 0 रैंक नहीं दोगे उसको, क्या कौन सा रैंक दोगे? 100 रैंक, कि भाई तू सबसे लास्ट रैंक वाला तू है, भले उसके 0 मार्क्स है. तो ऑर्डिनल रैंक, ऑर्डिनल डेटा 0 से कभी स्टार्ट नहीं होते, नॉमिनल डेटा 0 से स्टार्ट नहीं होते. इंटरवल डेटा में है ना, आर्टिफिशियल 0 होता है, उसका एग्जिस्ट रियल 0 नहीं होता है. जैसे मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर कभी 0 होता है? 0 मतलब एब्सेंट ऑफ नो टेम्परेचर, ऐसा हो ही नहीं सकता है. इट इज नॉट, वो उसको बोलता है आर्बिट्रेरी 0. आर्बिट्रेरी 0 मतलब वो देखने में 0 है, लिखने में 0 है, बट दिस एक्चुअल 0 इज नॉट एग्जिस्ट. तो इंटरवल डेटा में 0 होता है, लेकिन वो भी एक्चुअल 0 नहीं है, राइट? अब उसके बाद आ जाता है रेशियो डेटा. रेशियो डेटा में ऑल द डेटा, ऑल द नंबर असाइंड टू एनी ऑब्जेक्ट और एनी एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच स्टार्ट फ्रॉम 0. जैसे आपको बोला कि आपके अकाउंट में कैसा पैसा है, तो आप बोलोगे मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस अकाउंट है, मैं 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ, राइट? तो एक्चुअल 0 एग्जिस्ट इन रेशियो डेटा, राइट? फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, जब आप कोई कार हायर पे करते हो या आप जब ट्रैवल करते हो, तो आप क्या करते हो? 0 मीटर सेट करते हो कि भाई मुझे डिस्टेंस मापना है. तो डिस्टेंस कहाँ से मापेंगे आप? 0 से. अब अपनी हाइट कहाँ से मापेंगे कि भाई 0 से मैं खड़ा रहूंगा, फिर मैं हाइट मापूंगा, राइट? सो ये सारे जो डेटा है विच इज हैविंग अ 0 ओरिएंटेशन, जिसकी शुरुआत और जिसको हम 0 से मापने की शुरुआत कर सकते हैं, वो सारे डेटा हो जाएंगे रेशियो डेटा, राइट? एब्सोल्यूट 0 एग्जिस्ट, जो प्योर साइंस में सारे डेटा 0 पे मिलते हैं, राइट? वेट, हाइट, डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड, लिक्विड, ऑल सारे डेटा जो है वो रेशियो से मापे जाते हैं. फॉर एग्जांपल हम जैसे पेट्रोल डालने जाते हैं ना पेट्रोल पंप पे, तो हम वो पेट्रोल पंप वाला क्या बोलता है हमें कि सर 0 देख लो,
मतलब वो 0 से उसका मेजरमेंट स्टार्ट होगा। तो ये सारे डेटा की हमें एक बार समझ होनी चाहिए कि भी डेटा क्या है और किस तरह से वो वर्क करता है, राइट। इसकी समझ क्यों है कि डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ डेटा यू नीड टू सिलेक्ट पर्टिकुलर स्टेटिस्टिकल टेस्ट, राइट। आपको देखो मैं इतना फोकस स्टेटिस्टिकल टेस्ट पे क्यों नहीं कर रहा हूँ अभी कि मैं व्हाई आई एम नॉट गोइंग हैंड्स ऑन ऑन सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आप यूट्यूब से लर्न कर लोगे, राइट। हजारों वीडियोस है जो आपको सिखाते हैं, यूट्यूब पे है, हमारी चैनल पे है, राइट, हमारे वीडियोस भी है। तो आप उसमें देखते हो कि भाई कौन सी क्लिक कहाँ करने है, उसके बाद कहाँ जाना है, तो उसके बाद सॉफ्टवेयर तो सीख जाओगे। लेकिन सॉफ्टवेयर जो नहीं समझ सकता है वो समझ रिसर्चर के पास होनी चाहिए, राइट। सॉफ्टवेयर तो आप जैसे नचाओगे ऐसे नाचेगा, राइट। तो सॉफ्टवेयर को क्या कमांड देने हैं और किस तरह से सॉफ्टवेयर वर्क करता है, दिस स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर विद द रिसर्चर। तो आपके पास ये समझ होना बहुत जरूरी है कि आप को जो डेटा के साथ डील करते हो, जो आपके पास वेरिएबल्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे आपके पास जेंडर का डेटा होगा तो जेंडर इज विच टाइप ऑफ वेरिएबल, आपके पास इनकम का डेटा होगा तो इनकम इज विच टाइप ऑफ वेरिएबल, आपके पास डेटा होगा जियोग्राफी कि भाई नॉर्थ कच्छ, साउथ कच्छ है, ईस्ट कच्छ है या वेस्ट कच्छ से डेटा है तो आपके पास वो डेटा होगा। तालुका की कोडिंग्स होगी तो वो कौन से टाइप का डेटा है। आपके पास लिटरेचर होगा तो लिटरेचर पे आप आर्टिकल्स के नंबरिंग करते हो कि तो आर्टिकल का नंबर है वो कौन से टाइप का डेटा है। तो एवरी नंबर हैव अ सर्टेन प्रॉपर्टीज टू बी explain, and based on this property we need to figure out which any analytical test is applicable। ये सारी टेस्ट हर सॉफ्टवेयर में होती है। ऐसा नहीं कि आप एक्सेल सीखो या एसपीएसएस सीखो या एमओएस सीखो, सबके अपने अपने अलग अलग यूनिक फीचर्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, राइट। बट एवरी टेक्नोलॉजी वर्क ऑन द सिंपल बैकग्राउंड। उसका एक सिंपल लॉजिक यही है कि आप कौन से टाइप का रॉ मटेरियल उसको सप्लाई करते हो, राइट। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। यदि आप रॉन्ग डेटा दोगे तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस करके देगा लेकिन उस एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है। तो आपको एक बात क्लियर होगी, डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा। एनी क्वेश्चंस इन टाइप्स ऑफ डेटा है? किसी को कोई भी क्वेश्चन तो पूछ लेना। 4 टाइप के डेटा है, मैट्रिक, नॉन मैट्रिक डेटा। यदि ये डेटा है तो हमने 4 टाइप के डेटा को डिस्कस किया, नॉमिनल डेटा, इंटरवल डेटा, ऑर्डिनल डेटा एंड रेशियो डेटा, राइट। अभी चारों डेटा को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी होगी हमारी नॉन मैट्रिक डेटा और एक कैटेगरी है हमारी मैट्रिक डेटा। नॉन मैट्रिक में कौन कौन से आते हैं? नॉमिनल डेटा, सारे नॉमिनल डेटा जो है उसको हम नॉन मैट्रिक डेटा बोलते हैं। ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा, रेशियो डेटा को हम मैट्रिक डेटा बोलते हैं। तो मेक की सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने सारे डेटा को 1-2 कैटेगरी में डाल दिया। अब हम समझते हैं कि जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, राइट, तब हमें कौन सा एनालिसिस कब करना चाहिए, राइट, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। हमारे पास मोस्ट ऑफ जो रिसर्चर आते हैं, मोस्ट ऑफ वो पीएचडी स्टूडेंट भी होते हैं, इवन गाइड भी होते हैं। डेटा कलेक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि उसमें टेस्ट कौन सा करेंगे, राइट। अभी मेरा एक लेक्चर अभी मुंबई में है, डे आफ्टर टुमारो, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में भी वही टॉपिक है, हाउ टू सिलेक्ट द टाइप्स ऑफ टूल्स। कि डेटा आ जाने के बाद आप कौन सी टेस्ट एग्जीक्यूट करोगे, कौन सा स्टेटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करोगे। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन टू ऑल द रिसर्चर। और वो क्वेश्चन क्यों होता है? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग अ फेमिलियरिटी ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा। यदि आप अपनी क्वेश्चनर लेके बैठोगे, आप अपने डेटा को देखोगे तो डेटा आपको सामने से बता देता है कि इस डेटा पे कौन सी टेस्ट एप्लीकेबल है, राइट। तो ये यदि आपके पास यदि ये समझ आ जाती है तो यू डोंट रिक्वायर हेल्प ऑफ एनीबॉडी, राइट। आप अपने आप पूरी रिसर्च की जो जर्नी है वो आप अपने सेल्फ तरीके से आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हो, राइट। दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ डेटा, राइट। अब देखो एक डेटा है, अब एक 3 टाइप के एनालिटिकल टूल है। एक होता है यूनिवेरिएट, दूसरा होता है बाइवेरिएट एंड थर्ड होता है मल्टीवेरिएट। अब यूनिवेरिएट का मतलब यूनिवेरिएट का मतलब है
वेरिएट मतलब यूनि मतलब वन, यदि एक ही वेरिएबल को आपको एनालाइज करना है तो उसको बोला जाता है यूनिवेरिएट, राइट, यूनिवेरिएट। अभी समझो मेरे पास एक ही डेटा सेट है, मतलब एक ही कॉलम है मेरे एक्सेल फाइल में, तो एक ही कॉलम पे मैं क्या कर सकता हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। वो कॉलम जेंडर का भी हो सकता है, वो कॉलम हमारे इनकम का भी हो सकता है, वो कॉलम डिस्टेंस का भी हो सकता है, वो कॉलम जो है वो सेटिस्फेक्शन का भी हो सकता है, वो कॉलम है द ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑन पॉलिटिक्स, वो भी हो सकता है। आपने ऐसा रिसर्च किया, एनी क्वेश्चंस यू हैव इट, राइट, तो उस पे हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। यूनिवेरिएट एनालिसिस में हमारे पास दो चॉइस है, वन है मैट्रिक एंड एक है नॉन मैट्रिक। मैट्रिक डेटा मतलब ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा एंड रेशियो डेटा। नॉन मैट्रिक डेटा मतलब नॉमिनल डेटा। अब मैं आपको एक डेटा एनालिसिस के साथ कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बेटर में समझ में आएगा। मैंने तो आपको सॉफ्टवेयर का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। Screen is visible? No, sir. I think now it is visible. Yes, sir. Yes, sir. ये एक होम स्क्रीन है SPSS सॉफ्टवेयर की, राइट, जिसमें हमें पूरा एनालिसिस जो करना होता है, वो पूरी एक स्क्रीन है जो जस्ट लुक लाइक एक्सेल, राइट। अब सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम क्लासरूम में स्टेटिस्टिक सीखते थे और क्लासरूम में हम जब डिस्कशन करते थे, उस टाइम पे हमारे स्टेटिस्टिक के टीचर क्या करते थे, हमें सैंपल डेटा के भाई चलो ये 4 ऑब्जर्वेशन है, उसकी एवरेज निकालो, या 10 ऑब्जर्वेशन की एवरेज निकालो। तो जब डेटा सेट छोटा होता है, जिसकी जब आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है या 50 ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम, तब उसकी मैन्युअल या कैलकुलेटर के साथ आप एवरेज निकाल सकते हो, राइट, सिंपल वे में कर सकते हो। But when you are doing a PhD or when your data size is a 500 sample, 600 sample, 1000 sample, right, तब आप उसको मैन्युअली हैंडल नहीं कर पाओगे, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल दिस डेटा मैन्युअली इफ द डेटा इज इन अ ह्यूज क्वांटिटी। तो उस टाइम पे हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अब ये एक सॉफ्टवेयर है, राइट, तो इसमें जब आप करते हो तो मैं वेरी क्विकली करता हूँ ये सारी चीजों, ये सारी चीजों के यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है ना, और आप कभी भी चाहो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी के हाउ टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर, आई विल गिव यू द लिंक एंड ऑल दिस थिंग, वो सारी चीजें अवेलेबल है। थोड़ा ब्रीफ में कर देता हूँ कि सॉफ्टवेयर में आपको जो चीज पहले फेज में देखें, बाकी सारा ऑटो मोड में चला जाएगा, आप अपने आप सीखते जाओगे। जब आप स्टार्ट करते हो सॉफ्टवेयर, ये पेड सॉफ्टवेयर है, द SPSS सॉफ्टवेयर इज IBM कंपनी का है, राइट, IBM कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ये वाला सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर का नाम है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ये जो सॉफ्टवेयर है वो। अब ये सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि वर्ल्ड की हर यूनिवर्सिटी आज इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है,
राइट। इस सॉफ्टवेयर पे सारा डेटा एनालिसिस, आप हजारों की सैंपल साइज हो, लाखों ऑब्जर्वेशन को आप हैंडल कर सकते हो। तो जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपको दो चीज देखनी है, एक डेटा व्यू है, देखो यहाँ पे डेटा व्यू है आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, और एक होता है वेरिएबल व्यू। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द डेटा एंट्री। अब आप समझो मेरे पास एक ऐसी क्वेश्चन आर है जिसमें मैं आपको एक सैंपल एनालिसिस एक बोलता हूँ क्वेश्चन आर, कैन अंडरस्टैंड। दिख रहा है आपको क्वेश्चन आर, दिख रही है वर्ड फाइल दिख रही है आपको शायद। अब देखो एक जी सर, जी सर। एक ऐसी एक हमने एक रिसर्च किया था, आर्या इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, और आर्या इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी को रिसर्च किया कि एम्प्लॉय रिटेंशन करना था कि भाई एम्प्लॉयज हमारी कंपनी को छोड़ के चले क्यों जाते हैं, उसको रिसर्च करना था। अब उसके लिए उसने एक क्वेश्चनर बनाया कि ये सारे क्वेश्चंस हमें पूछने थे, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने पूछे, उसकी जेंडर कैटेगरी पूछा, मेल क्या है फीमेल क्या है, राइट। हमने उसको एम्प्लॉय क्लास को जाना, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो, फुल टाइम एम्प्लॉय, आप कहाँ से हो, आउटसाइड इंडिया हो, इंडिया से हो, आपकी एज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, राइट। आपका जॉब परफॉर्मेंस लास्ट ईयर कैसा था, वेरी लो परफॉर्मर थे या वेरी हाई परफॉर्मर थे। तो सारी चीजें हमने उसको इस क्वेश्चन से हमने डेटा कलेक्ट किया था 500 लोगों का, 500 पीपल एम्प्लॉयज थे, उसका हमने डेटा कलेक्शन किया था, और ये सारे क्वेश्चन पूछा था कि भी ऑल थिंग्स कंसीडर आई फील वेरी सेटिस्फाइड व्हेन आई थिंक अबाउट माय जॉब, व्हेन यू थिंक अबाउट योर जॉब हाउ सेटिस्फाइड डू यू फील, हाउ सेटिस्फाइड यू विथ योर करंट जॉब, राइट। हमने पूछा कि आई एम विलिंग टू पुट ग्रेट डील्स ऑफ एफर्ट बियॉन्ड दैट नॉर्मल एक्सपेक्ट, ये सारी मैंने पूछा, आई एम प्राउड टू टेल अदर्स वर्क फॉर एलआई आर्या इंडिया लिमिटेड, ये सारे क्वेश्चन हमने पूछे थे। और इसकी हमें अभी डेटा एंट्री करनी है। आपने सारे 5 पूछा था, नेवर, रेयरली, ओकेजनली, ऑफन, वेरी ऑफन, नॉट हैप्पी, समवॉट हैप्पी, हैप्पी, वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। मतलब इस क्वेश्चन को हमने पूछा कि हाउ हैप्पी यू आर विथ वर्क ऑफ योर कोवर्कर्स, आप अपने साथीदार से साथ काम करते हो तो कितने खुश हो। तो हमने पूछा, उसको दिया कि आप रिस्पॉन्स दो, नॉट हैप्पी, समवॉट हैप्पी, हैप्पी, वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। तो कोई भी एक ऑप्शन को उसने टिक मार्क किया होगा, ठीक है। हमने पूछा कि हाउ लाइकली इट इज दैट यू विल बी वर्किंग एट एल 1 ईयर फ्रॉम टुडे, तो अनलाइकली, अनलाइकली, वेरी अनलाइकली, समवॉट लाइकली, लाइकली, वेरी लाइकली। और वो उसने अपने मेल फीमेल के टिक मार्क किया होगा, पार्ट टाइम फुल टाइम भी टिक मार्क किया होगा, इस तरह से उसने क्वेश्चन भरा होगा। अभी सारे डेटा को हमें इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में एंटर करना है, राइट। तो डेटा एंट्री दो तरीके से हो सकती है एसपीएस सॉफ्टवेयर में। एक तो आपके पास डेटा एक्सेल में है, यदि आपने गूगल डॉक से डेटा कलेक्ट किया है, अब तो ये फैशन अच्छी चल गई बिकॉज ऑफ कोरोना, कि यू आर कलेक्टिंग योर डेटा थ्रू गूगल डॉक्स, लिंक भेज दो, वो लिंक भर देता है, आप अपने गूगल अकाउंट से डायरेक्टली एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो दो तरीके से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, एक होता है इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम एक्सेल टू एसपीएस, और सपोज आपके पास फिजिकल नेचर में डेटा है, क्वेश्चनर में डेटा है, तो आप उस डेटा की डायरेक्ट एंट्री भी आप एसपीएस में कर सकते हो। तो मैं आपको एक एसपीएस का छोटा सा डेटा एंट्री कैसे करना है आपको एक थोड़ा सा सिखा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है ये डेटा सेट, ये इसकी मुझे एंट्री करनी है, ये हाउ हैप्पी आई एम विथ माय कंपनीज कोवर्कर्स, राइट। ये क्वेश्चन मैंने पूछा और मुझे डेटा एंट्री करनी है जेंडर की, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, लॉट्स ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल, मैं छोटा सा एक उसको खत्म करके मैं थोड़ा एनालिसिस पार्ट पे जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक एस्पेक्ट है, यू ऑल आर पीएचडी स्कॉलर, तो आप यूट्यूब देख के भी सीख सकते हो, बट मैं थोड़ा फैमिलियर कर पाता हूँ आपको। अब ये मेरा ये डेटा एडिटर विंडो बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है,
इस विंडो को बोला जाता है डेटा एडिटर विंडो। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा ये डेटा एडिटर विंडो है आपका, ये यहाँ पे टॉप पे लिखा रहेगा। अब उसमें डेटा एंट्री कैसे करनी है, एक आपके राइट लेफ्ट हैंड बॉटम पे डेटा व्यू है और एक है आपका वेरिएबल व्यू। तो जो भी डेटा एंटर करने हैं वो आपको डेटा व्यू में करने हैं, और उस डेटा के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन है वो वेरिएबल व्यू में डालनी है। जैसे मुझे एक जेंडर का डेटा डालना है तो मैं वेरिएबल व्यू में जाऊंगा, पहले मैं वेरिएबल व्यू में जाऊंगा, यहाँ पे लिखा मैंने जेंडर, ठीक है। जैसे ही मैं वन साइडेड एरो करूंगा तो पूरी रो एक्टिव हो जाएगी। पर मुझे डालना है हैप्पीनेस लेवल डालना है, तो यहाँ गया 2 क्वेश्चन मुझे डालने हैं। अब जैसे ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे डाल दूंगा तो जब मैं डेटा व्यू में जाऊंगा तो डेटा व्यू में देखो ये पूरा उसके टॉप पे लिखा हुआ आ गया कि ये कॉलम में डेटा जेंडर का रहेगा और ये कॉलम में डेटा हैप्पीनेस लेवल का रहेगा, राइट। अब मुझे डेटा एंटर करनी है कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जेंडर मेल था, मेल का कोडिंग 1 है, उसने कहा कि मैं हैप्पी हूँ या वेरी हैप्पी हूँ, तो आप उसका कोडिंग दे दोगे जस्ट लाइक 4 4 5 फॉर वेरी हैप्पी, extremely happy, 4 for very happy, 3 for happy, 2 for somewhat happy and 1 for not happy। तो मैंने उसको कोडिंग दे दिया। सेकंड था फीमेल था, इज असाइनिंग 5, वह एक फिर मेल आया, उसने कहा कि मैं वेरी हैप्पी हूँ, 2 3 1 2। so likewise you assign the coding to all the responses, इससे आप डेटा एंटर कर सकते हो। अब देखो सॉफ्टवेयर को पता नहीं है कि व्हाट इज 1 और व्हाट इज 2, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो दोनों 2 तो सेम है सॉफ्टवेयर के लिए, राइट। जैसे हमने डिस्कस किया था, यू रिमेम्बर कि दो एज सच दिखने में 2 है, दिखने में सेम है, राइट। अभी एक मेल है, उसका कोडिंग भी 1 है, तो ये दोनों 1 सेम हो गया? दोनों 1 सेम नहीं है, राइट। ये उसका जेंडर का कोडिंग है, 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल, ये है नॉट हैप्पी और ये 5 है वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। तो दोनों की यूनिट ऑफ मेजरमेंट में फर्क है, तो कहाँ से आप उसको बताओगे? तो सॉफ्टवेयर को आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि भाई जो भी डेटा आपके पास है वो डेटा किस तरीके का है, कौन से स्केल का है। दैट्स वाई हमने उस टाइप ऑफ स्केल पे ज्यादा फोकस किया शुरुआत में, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार डेटा एंट्री करने के बाद आपको वेरिएबल व्यू में आ जाना है। अब सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं है 1 क्या है, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। वैल्यू कॉलम में 1 का मतलब है मेल, 2 मतलब फीमेल, राइट। अब उसको पता चल गया कि ये जो 1 है वो मेल है, 2 मतलब फीमेल है। अब ये इसको भी नाम देने पड़ेंगे कि 1 2 3 4 क्या है, वो मुझे बताओ। सॉफ्टवेयर बोला कि मेरे पास उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि भाई आपका ये जो है यहाँ पे इसको बोलेंगे जो 5 लिखा है ना आपके डेटा सेट में, वो एक्सट्रीमली हैप्पी वाला डेटा है, राइट। उसको ऐड करेंगे। 4 वाला डेटा क्या है, उसका डेटा है वेरी हैप्पी, राइट। आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं उसकी डेटा फाइल भी आपको दे दूंगा, आप उसका स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड करके, डेमो वर्जन डाउनलोड करके आप उसको कर सकते हो, घर पे सीख सकते हो, राइट। अब हो गया 2 मतलब समवट हैप्पी एंड 1 मतलब नॉट हैप्पी, राइट। ये हो गया आपका। अब आपका डेटा सेट रेडी हो गया, ठीक है। अब देखो आपको कुछ भी एनालिसिस करना है, एक बार रिसर्चर का काम क्या है, आपको राइट डेटा हेड सबमिट करना है। क्या भुयन, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर आपका स्क्रीन सर विजिबल नहीं था सर, जिससे कि आपने वैल्यूज ऐड किया था वो नहीं आया था सर। अभी नहीं है? सर नहीं, वो विजिबल नहीं था सर। अभी विजिबल है? नहीं सर। विजिबल नहीं है तो एनीबॉडी और Sir, it's visible. Visible. Sir, it's visible. सर ओनली योर मेन स्क्रीन इज विजिबल। IBM SPS स्टैटिस्टिक्स जो मेन सर है सर इंटरफेस, वो विजिबल है आपका सर। आपने जो वैल्यूज ऐड किया वो सर विजिबल नहीं था सर। मतलब आपका सर एक स्क्रीन शेयर है सर, वो आपका PC का स्क्रीन शेयर नहीं होगा सर, सॉरी।
ये स्क्रीन है आपके पास? अब हाँ, क्या ये है सर, हाँ है, ये है सर, लेकिन ये स्क्रीन है, चेंज हो रहा है स्क्रीन? है सर, वो है, हो रहा है, हो रहा है, अच्छे से हो रहा है सर, अच्छे और से। सर मेल, अब सर जो देखो। मेल आपने ऐड किया था उसके बैकग्राउंड में जो भी, तो वो सर नहीं दिखा सर। ओके, अभी ये स्क्रीन नहीं दिखा आपने, अभी पॉपअप विंडो दिखा? ना सर, पॉपअप विंडो नहीं दिखा सर। नहीं दिख रहा है ना, चलो मैं आपको बताता संजय सर, शायद आपके एंड पे कोई इश्यू है नेट में। नहीं, पॉपअप विंडो नहीं दिख रहा है एक्चुअली। हूँ। जैसे आपका जो स्क्रीन वैल्यू वाला जो दिख रहा है ना, ये वैल्यू वाला कॉलम, राइट? अब देखो ये पूरा ब्लैंक है, ब्लैंक, यहाँ पे कुछ नहीं है ना। हमारे में दिख रहा है सर। यस सर, ब्लैंक ही है, नीचे दो ही कॉलम में लिखा हुआ है, नीचे कॉलम ब्लैंक है। We have only 2 rows, 2 ही रो है हमारे पास। हाँ बस है? बस 2 ही रो में दिख रहा है। ओके ओके, अब मैं आगे की प्रोसेस करता हूँ, यदि वो विजिबल है तो मुझे बताना आप। हाँ, अब समझो ये मेरा डेटा सेट्स है, अभी मैं उसका टेबल बनाना चाहता हूँ। ये ड्रॉप डाउन दिखा, अभी कुछ नीचे आया लिस्ट यस यस, आया? नो सर, नो सर। ओके ओके ओके, सर आई थिंक आपने जो लास्ट शेयर किया था आपका पीसी स्क्रीन ऐसे सर दिखेगा, लेकिन इसमें सर लगभग नहीं दिखेगा सर। क्या नहीं दिखेगा? सर एक्चुअली जो आपने पीसी स्क्रीन लास्ट टाइम सर, लास्ट जो शेयर किया था वैसे लगभग सर दिखेगा। ये आपका ओनली सर मेन स्क्रीन आपका सर विजिबल रहेगा। हाउ इट इज फिक्स द प्रॉब्लम? ये कैसे फिक्स करेंगे इसको? सर वो आपको सर पीसी का स्क्रीन से शेयर करना पड़ेगा सर, पीसी स्क्रीन। सर एक्चुअली आपका ये मेन स्क्रीन सर यही स्टैटिक हो जाएगा सर। सर आपने अभी लास्ट टाइम किया ही था सर वो एक बार। इंटर स्क्रीन ये वाला? ये सर, हाँ ये सर, हाँ सर इसमें दिखेगा सर। यदि मैं सॉफ्टवेयर में कुछ काम कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है वो? करूँ तो? जी सर, जी सर, दिख रहा है, दिख रहा है। यस आप ये देखा मेनू, आप एनालाइज देख रहे हो? एनालाइज में क्लिक करोगे आप तो आपको एक बहुत लंबी सी लिस्ट दिख रही है। हाँ दिख रही है सर। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। अब देखो ये सॉफ्टवेयर इतना बड़ा है कि इसको सीखने में ना आपको साल 2 साल 3 साल भी आप करोगे तो ये इस सारे सॉफ्टवेयर के इतने सारे एट्रीब्यूट्स है, इतने बेनिफिट, इतने फीचर्स है, तो हम सीखते ही जा सकते हैं। इतना सारा ये गहन और इतना डीप सॉफ्टवेयर है कि आप उसमें इतना जितना डीप ड्राइव करोगे उतने आपको मोती मिलेंगे, उतनी अच्छे एनालिसिस आप कर सकते हो, राइट? मैं अभी अब देखो मुझे बेसिक एनालिसिस करना है, ये सारे टेबल मुझे बनाना है और मुझे इन सारे का चार्ट भी बनाना है। ऐसे लाइकवाइज हमारे पास 100-200 क्वेश्चन क्यों ना हो, राइट? मेरे पास 50 क्वेश्चन है, ये सैंपल साइज भी मेरी 1000 की है और मुझे 10 से 5 सेकंड में सब वेरिएबल्स का मुझे चार्ट बनाना है, टेबल्स बनाना है। और फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में जाऊंगा, मैं दोनों वेरिएबल को बारी बारी यहाँ खींच के लाऊंगा, राइट? और मैं चार्ट पे टिक करूंगा और मुझे उसके पाई चार्ट चाहिए। पाई चार्ट करके मैं कंटिन्यू करके ओके कर दूंगा तो मुझे वो हार्डली आपके 10 सेकेंड में 5 सेकेंड में आपको सारे चार्ट्स बनाई
दिखाई देगी, राइट? राइट, सी आ गया, दिख रहा हो? जेंडर का आ गया, हैप्पीनेस का आ गया, उसका चार्ट भी आ गया, हैप्पीनेस का चार्ट भी आ गया, राइट? सो एवरीथिंग इज वेरी फ्यू क्लिक अवे, मतलब 5-7 क्लिक सेकंड में आप 50 क्वेश्चन हो या 1000 रिस्पॉन्सेस का आप चार्ट बना सकते हो, राइट? सो ये एक सॉफ्टवेयर की ताकत है। ये सारी चीजें आप ऐसा चार्ट यदि आप बनाने जाओगे ना एक्सेल में, तो इट विल टेक योर इंटायर डे फॉर 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का चार्ट बनाना है, मतलब आप सोचो 50 क्वेश्चन को आपको टेबल फॉर्म में डालना है, चार्ट फॉर्म में डालना है, so it will take a whole day। वो यहाँ पे आप 10 साल 5-10 सेकंड में कर लेते हो। ये एनालिसिस नहीं है, जैसा आप ना काफी समटाइम हम काफी एक मिस्टेक्स करते हैं कि चार्ट और टेबल को एनालिसिस मान लेते हैं। चार्ट इन टेबल इज नॉट एनालिसिस, चार्ट इन टेबल इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। आपके डेटा की प्रॉपर्टी क्या है वो आप दिखा रहे हो कि मेरे डेटा सेट्स में समझो कि 4 मेल है एंड 2 फीमेल है, 66% आर मेल, 33% आर फीमेल, और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये है। तो चार्ट एंड ग्राफ इज नॉट एनालिसिस, राइट? इट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो उसको एनालिसिस समझने की कोशिश भूल मत करना, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें क्या एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अब मैं मेन एनालिसिस पे आता हूँ। यूनिवेरिएट एनालिसिस जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जो एक्चुअल एनालिसिस जो हमें करना है वो कैसे करेंगे, राइट? मैं आपको एक डेटा फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ, जस्ट हैव अ लुक। इन वेरी इंटरेस्टिंग डेटा फाइल है वो, आपको समझ में, आप एक ही टेस्ट में करके दूंगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड। आपको दिख रहा है केस सामने? कैन यू सी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सॉफ्टवेयर एक ये सबसे बेसिक एनालिसिस टेस्ट जो हम एसपीएससी से करने वाले हैं, राइट? एक एग्जांपल आपके सामने, जस्ट हैव अ लुक। अभी एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट? वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है कि वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक मोबाइल बना रही है। जब आप मोबाइल लेने जाते हो ना, तो आपको वो शो होता है कि आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ क्या है। तो लोग बोलते हैं कि ये मोबाइल बैटरी की लाइफ 3000 mAh है, 4000 mAh है, 5000 mAh है, राइट? तो इस तरह से वो आपको बताते हैं बैटरी लाइफ के बारे में, ठीक है? अब आप देखो, कंपनी ने क्लेम किया है 3000 बैटरी लाइफ देने का, और हमें चेक करना है कि कंपनी सही बोल रही है गलत बोल रही है। तो हम क्या कैसे करेंगे, राइट? हाउ यू कैन क्रॉस वेरीफाई कि कंपनी सेइंग द राइट थिंग और रॉन्ग थिंग कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि चलो हम 10 बैटरी का सैंपल, कंपनी ने लाखों मोबाइल फोन बनाए हैं, तो उसमें से हम 10 मोबाइल फोन का सैंपल लेते हैं, ठीक है? तो हमने अलग अलग स्टोर पे जाके सेम मोबाइल फोन को एक मोबाइल लिया, दूसरा सेम मोबाइल, इस सेम ब्रांड का सेम कंपनी के हमने 10 मोबाइल फोन लिए, और उसी बैटरी को हमने मेजर, उसकी लाइफ को मेजर किया एक साइंटिफिक इक्विपमेंट के द्वारा, ठीक है? तो हमें पता चला कि एक फर्स्ट जो मोबाइल फोन था उसकी बैटरी लाइफ ये थी, सेकंड ये था, उसकी लाइफ ये थी, थर्ड का ये था। सो लाइकवाइज हमारे 10 ऑब्जर्वेशन है जो हमारे पास डेटा कलेक्शन के मिले हैं। अब मुझे क्वेश्चन ये है करना है कि वेदर कंपनी सेइंग राइट और रॉन्ग। तो मैं कैसे चेक करूंगा कंपनी सही बोल रही है गलत बोल रही है, कंपनी कस्टमर के साथ चीटिंग कर रही है नहीं कर रही है? ये सारी चीजें मुझे क्लेम को वेरीफाई करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा डेटा फाइल है मेरे एसपीएसएस फाइल में, कि मैंने डेटा एंट्री किया था, तो ये मेरा बैटरी लाइफ का डेटा डाला, 10 सैंपल मैंने डाले कि ये 10 लोगों का सैंपल ये है, और उसके साथ मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं एनालाइज में जाऊंगा। ये देखो, ये इसके कमांड सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हो गए,
डोंट वरी अबाउट द विच कमांड टू बी फॉलो, राइट, वो सारे आपको मिल जाएंगे। आपको देखना है कि हम उससे कर क्या सकते हैं, सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है, राइट, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं एनालाइज में गया, एनालाइज में मैंने कंपेयर मीन पे क्लिक किया, कंपेयर मीन में जाके मैंने वन सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक किया, राइट, वन सैंपल टी टेस्ट में जाके मैंने एक, तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा। जैसे पॉपअप विंडो आता है तो आप क्या करोगे कि उस पर्टिकुलर डेटा फाइल को आप उठा के यहाँ पे डालोगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास डेटा है, राइट, ये सारा डेटा मेरे पास है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एनालाइज में गया, एनालाइज में मैं कंपेयर मीन में जाऊंगा और वन सैंपल टी टेस्ट करूंगा। सिर्फ वन सैंपल टी टेस्ट क्यों जरूरी है, वन सैंपल टी टेस्ट क्या करता है वो समझ लेते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे क्लास में एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज 5 फीट 5 इंच है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सारे स्टूडेंट की एवरेज हाइट को, मेरा एक बेंचमार्क था 5 फुट 5 इंच के साथ मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मेरे स्टूडेंट, मेरे रीजन में एवरेज आईक्यू ऑफ एडल्ट इज 95, तो मैं क्या करूंगा, वो 95 के क्लेम को वेरीफाई करने के लिए मैं 100 लोगों का आईक्यू मापूंगा, उस आईक्यू के साथ मैं 95 का जो क्लेम है उसको मेजर करूंगा। तो इस तरह से कोई भी चीज यदि आपके पास ऐसी है विच इज एस्टैब्लिश, एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को आप एक्चुअल के साथ कंपेयर करना चाहते हो, और तो हम कर सकते हैं, हम करते हैं वन सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पे हमारे पास ये एक्चुअल बैटरी लाइफ है और कंपनी ने स्टैंडर्ड दिया है 3000 का, तो क्या वो 3000 जो वैल्यूज है वो क्लेम जो है वो सही या नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिसर्च में, रिसर्च में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिफरेंस तो आने ही वाला है, राइट, डिफरेंस तो, यदि मैं इस 10 मोबाइल फोन की एवरेज निकालूंगा ना, इट विल नेवर कम एग्जैक्टली 3000। यदि आप 100 स्टूडेंट का सैंपल लोगे और 100 स्टूडेंट की हाइट मापोगे, इट विल नेवर कम एग्जैक्टली 5 फीट 5 इंच। तो क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो डिफरेंसेस है एक्चुअल हाइट और स्टैंडर्ड हाइट में बीच में जो डिफरेंस आता है वो कितना सेंसिटिव है। यदि आप नल हाइपोथेसिस देखोगे तो नल हाइपोथेसिस में डेफिनेशन आप कैसे लिखते हैं, देयर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो वो सिग्निफिकेंट जो वर्ड लिखते हो ना, वो इंपॉर्टेंट होता है हाइपोथेसिस में, कि सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मतलब मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट मतलब इन्फ्लुएंसिंग। तो ये जो वैल्यूज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंस आ रही है वो समझने के लिए हम ऐसे सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। जैसे मैं एनालाइज करता हूँ, कंपेयर मीन में गया, आप केवल देख के जाए, डोंट वरी अबाउट द ऑल दिस थिंग। वन सैंपल टी टेस्ट में गया, मैं बैटरी लाइफ को यहाँ पे ऐसे लेके आया, यहाँ पे मैंने लिखा 3000 जो कंपनी क्लेम कर रही थी, मैंने ओके कर दिया, राइट। आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है आपको, कैन यू सी द रिजल्ट्स? यस सर। अब देखो 10 मोबाइल फोन की बैटरी की लाइफ की एवरेज क्या है, 2730, मतलब 2730 इसकी एवरेज लाइफ 10 मोबाइल का जो आपने सैंपल लिया उसकी है। आपने क्लेम किया था 3000 का, 2730 माइनस 3000 करोगे तो आपको आपके पास आंसर आएगा 269। मतलब कंपनी बोल रही है 3000 देने की, लेकिन उसकी एक्चुअल लाइफ आती है 2730। अब मैं क्या कंपनी के पास, कंपनी को क्लेम करूं क्या, कंपनी को कोर्ट में केस करूं कि भाई कंपनी झूठ बोल रही है, कंपनी इज चीटिंग टू देयर कस्टमर्स, दे रही है 2730 और बोल रही है 3000। तो मैं अब क्या करूं, कंपनी को मैं कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकता हूं। तो ये सारे क्वेश्चन जो क्लेम है, ऐसे सारे जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें पता चलता है वन सैंपल टी टेस्ट के साथ। एज सच देखा जाए इस एग्जांपल में तो डिफरेंस इज 269, है ना, डिफरेंस इज 269।
विच इज वेरी लार्ज डिफरेंस आपको दिखता है कि भाई ये 269 का जो डिफरेंस है आपको वो दिख रहा है, राइट? तो वो 269 का डिफरेंस रियल में बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या? ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है? तो आपके पास तो एक यहाँ पे लिखा हुआ सिग्निफिकेंट वैल्यूज, राइट? SIG वैल्यू, सिग्निफिकेंट वैल्यूज, टू टेल, वो वैल्यू एक स्टेटिस्टिकल थंब रूल है। यदि ये वैल्यू लेस देन 0.05 यदि है, ये वैल्यू यदि लेस देन 0.05 है, तो आप उस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करोगे कि देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बैटरी लाइफ एंड द क्लेम मेड बाय द कंपनी, राइट? तो इस केस में ये वैल्यू 0.05 से कम है, तो हम स्ट्रेट अवे जाके क्या बोलेंगे कि बैटरी लाइफ ऑफ दिस मोबाइल फोन इज रियली लेस देन द क्लेम मेड बाय द कंपनी। मतलब आप इस टेबल के साथ, इस एविडेंस के साथ आप कोर्ट में जा सकते हो कि भी देखो ये हमारा रिसर्च किया हमने, ये कंपनी झूठ बोल रही है। तो कंपनी सामने से क्या क्वेश्चन करेगी कि आपने जानबूझ के ऐसा सैंपल लिया, आप दूसरी बार रिसर्च करके आओ, फिर हम मानेंगे। दूसरी बार आप ऐसा रिसर्च करोगे तो वापस यदि ऐसा कुछ रिजल्ट आता है, कंपनी वापस आपने ऐसा किया, तो ये टेस्ट पावर क्या देती है आप समझो। यहाँ पे लिखा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब मैं ये रिसर्च यदि सेम रिसर्च यदि मैं 100 बार करूंगा, 100 टाइम्स, आप समझे, यदि ये रिसर्च मैं 100 टाइम्स करूंगा तो जो वैल्यू माइनस में, यानी देखो अपर एंड लोअर माइनस में है, मतलब 100 टाइम में से 95 टाइम्स आपकी बैटरी लाइफ 3000 से कम ही आने वाली है। मतलब मैं 95% श्योर हूं कि ये कंपनी जो कह रही है उतनी बैटरी लाइफ दे नहीं रही है। तो ये सारी जो चीजें होती है वो सारी हम कर सकते हैं वन सैंपल टी टेस्ट के थ्रू, जिससे हम एनालिसिस करते हैं, राइट? तो वन सैंपल, मैंने आपको एक डेमो दिया, राइट, कि ये SPSS में इस तरह से हम बड़े से बड़े एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो SPSS सीखना इट्स नॉट अ बिग डील। आप कोई भी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लोगे, हमारे यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज भी होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं, तो आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम करोगे तो बहुत अच्छा है। तो आप उससे थ्रू आप हैंड्स ऑन करोगे तो पूरा सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। इट्स जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कुछ ड्रॉप डाउन मेनू है, 2-4 क्लिक करके आप पूरा सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, राइट? बट कौन सी एनालिटिकल टेस्ट कब यूज करनी है वो हमें समझ में आना चाहिए, राइट? ये चीज आपको गूगल नहीं बताएगी कि भाई मेरा डेटा सेट ये है, मेरे पास ये डेटा है, तो उस पर कौन सा टेस्ट यूज करूं, मैं कौन सा टेस्ट एग्जीक्यूट करूं। दिस चीज विल नेवर टॉक बाय एनी गूगल सॉफ्टवेयर। तो आपको ये सारी चीजें समझनी रहेगी कि आपको किस तरह से आपको उस डेटा एनालिसिस में आगे बढ़ना है, राइट? तो ये हो गया हमारा काइंड ऑफ वन सैंपल टी टेस्ट, जो वन वेरिएट एनालिसिस था, राइट? अब हम कुछ और एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं कि हम कौन कौन से एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास अब हम कर सकते हैं, आपको एक चार्ट बताऊं, within a span of 1.5 hour is not possible to get in all the test, right? ये मैंने वन सैंपल टेस्ट का एग्जांपल लिया। मेरे पास एक क्वेश्चन था, बैटरी लाइफ इज अ मैट्रिक डेटा, वो रेशियो डेटा है, तो उसमें वन सैंपल टी टेस्ट करूंगा। यदि मेरे पास नॉन मैट्रिक डेटा जैसे जेंडर था उस केस में, तो जेंडर में कौन सा एनालिसिस होगा? जेंडर में होगा मेरा वन सैंपल काई स्क्वायर टेस्ट होगा, राइट? तो इसी तरह से यदि आपके पास दो वेरिएबल है, बाई वेरिएट मतलब टू वेरिएबल, बाई वेरिएट मतलब टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई के बीच में आप क्या एनालिसिस कर सकते हो? तीन टाइप के एनालिसिस दो वेरिएबल के बीच में हो सकते हैं। आइदर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट और एस्टिमेट द रिलेशनशिप को बोला जाता है कोरिलेशन। आप दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मेजर करना चाहते हो, तो उसको बोला जाता है अनोवा। और एक की इम्पैक्ट दूसरे पे क्या है, जैसे रेनफॉल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो ऐसे कोई इम्पैक्ट असेसमेंट काइंड ऑफ एनालिसिस है, तो उसको बोला जाता है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें अच्छी तरह से समझनी होती है कि हम कौन सा डेटा एनालिसिस कब करेंगे। या 4 मिनट, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, sir.
Sir, sorry, I'm disturbing you in between. But just we are talking about the methods to be used. So just I want to ask कि ये factor analysis है, वो कौन सी situation में use हो सकता है? एक I'll come to the point, right? जी ये सर. हमारा बाइवेरिएट था, इसमें दो वेरिएबल मतलब केवल दो कॉलम को ही हम यूज करेंगे, एक्स एंड वाई को, प्राइस एंड डिमांड हो गया, हाइट एंड इंटेलेक्चुअल हो गया, राइट, जेंडर एंड चॉइस हो गई, राइट, कोई भी दो वेरिएबल के ऊपर हम उसका एनालिसिस करेंगे। अब ये आता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, राइट। मल्टीवेरिएट मतलब दो से ज्यादा यदि वेरिएबल है तो कौन से टाइप का एनालिसिस आप कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड द मल्टीवेरिएट एनालिसिस। देखो ये एनालिसिस बहुत बड़ा आप ट्री देख रहे हो, राइट, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स टू बी डन, उसमें से अब छोटा सा जो मैम ने बोला 4 महीने, वो मैम वो देख रहा हूँ फैक्टर से यहाँ पे है ये। Yes sir, yes sir. Of the test from this massive entire analytical kind of technique, मतलब मल्टीवेरिएट एनालिसिस मतलब ऐसा टेक्निक जहां पे हम काफी सारे वेरिएबल को एक साथ क्लब करने की कोशिश करते हैं, राइट, काफी सारे वेरिएबल एक साथ रन होते हैं और उसमें से कुछ कॉमन पैटर्न्स फाइंड आउट करके आती है। तो ये सारे जो एडवांस एनालिसिस है मल्टीवेरिएट एनालिसिस के थ्रू हम कर सकते हैं। बिफोर we do run the multivariate analysis, we required strong understanding on basic type of analysis must be there, जैसे कोरिलेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, रिग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, अनोवा की नॉलेज होनी चाहिए, टी टेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो यदि बेसिक टेस्ट की नॉलेज आपको है तो आप ये सारे जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है वो अच्छी तरह से आप कर सकते हो। अब मैं आपके क्वेश्चन को पूछता हूँ, आंसर करता हूँ, ये फैक्टर एनालिसिस क्या है? फैक्टर एनालिसिस इज अ डेटा रिडक्शन टेक्निक। आपने एक टैगलाइन पढ़ी, एडवर्टाइजमेंट देखी होगी टेलीविजन, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, राइट? वो किस टू व्हीलर की टैगलाइन थी? व्हाई शुड बॉय हैव ऑल द फन, एक टू व्हीलर की एडवर्टाइजमेंट आती है, आपको याद हो? स्कूटी पेप शायद। Yes. ये प्लेजर की एडवर्टाइजमेंट थी, राइट? हाँ. ये टैगलाइन बनी कैसे? ये कोई शायर ने बनाई है क्या? एक टू व्हीलर की डेडलाइन थी डेफिनेटली मेल, बजाज पल्सर की टैगलाइन क्या है? डेफिनेटली मेल। ये कोई आर्टिस्ट ने नहीं बनाई है, ये टैगलाइन एक रिसर्च के प्रोडक्ट के बेस पे आई है। उस टेक्निक का नाम है फैक्टर एनालिसिस। जैसे मैं आपको एक बॉटल दिखाता हूँ, राइट, आपको इस बॉटल देख के आपके दिमाग में क्या आता है? तो आपके ग्रुप में 100 लोग हैं तो 100 लोग एक एक लाइन लिखेंगे, ठीक है? अब ये 100 लोग एक एक लाइन लिख रहे हैं, उसमें से सबसे कॉमन जो लाइन है, जो कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग कौन सी है, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि 100 जो लाइन है उसको रिड्यूस करते 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 मुझे कुछ 5-6 लाइन पे आना है कि भाई ये 5-6 लाइन में ही पूरे 100 लोगों का कहना आ जाता है। तो ये जो टेक्निक है ये होती है फैक्टर एनालिसिस, राइट? फैक्टर एनालिसिस क्या करता है कि काफी सारे वेरिएबल को वो बास्केट में डिवाइड करता है, कैटेगरी में डिवाइड करता है, फैक्टर में डिवाइड कर देता है कि ये आपके क्वेश्चन में समझो 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में से कौन से 5 क्वेश्चन एक बास्केट में जाएंगे, कौन से 10 क्वेश्चन दूसरे फैक्टर में जाएंगे, उसके बाद कौन से 10 क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन को वो 5 डिफरेंट फैक्टर में या कैटेगरी में वो डिवाइड कर देता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस हाईली यूजफुल in theory development। जैसे आपका तो के which are the factor responsible for anxiety and depression among youngster, तो आप कैसे फैक्टर निकालोगे, राइट? which are the most important factor in service quality of the bank, तो कैसे निकालोगे? तो ये सारे मॉडल बिल्डअप में, मॉडल डेवलपमेंट में फैक्टर एनालिसिस का यूज होता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ये तीन ही टेक्निक आपको यदि याद रखनी है, बाइवेरिएट, यूनिवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, उसमें पूरा एनालिसिस आ जाता है। दुनिया का पूरा एनालिसिस 3 टेक्निक्स में आ गया, राइट? सो ये सारी टेक्निक्स हो गई। सर मेरे पास कितना टाइम है? हाउ मच टाइम आई हैव इट? 12 o'clock? नो प्रॉब्लम सर, यू मे कंटिन्यू सर, मतलब કઈ વાંધો નથી સાહેબ. આપણે શેડ્યુલ 12 વાગ્યા સુધી છે ને? હા સાહેબ, 12 થી 12:30 ની વચમાં વાંધો નથી સાહેબ. ઓકે. સી તમે SPSS तो YouTube पे सीखी सकते हो, पर मेरा बेसिक इंटेंशन क्या है कि आप SPSS के पीछे जो रिक्वायरमेंट है, राइट, वो आप अच्छी तरह से जानो कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या है,
यूनिवेरिएट टेस्ट क्या है, बाइवेरिएट टेस्ट क्या है, मल्टीवेरिएट टेस्ट क्या है। हमने एक चीज आप कोर्स वर्क में भी सीखोगे, वो चीज है आउटलायर एंड नॉर्मालिटी। जब डेटा एनालिसिस करते हो तो आपका डेटा वायरस फ्री होना चाहिए, जिसको हम आउटलायर बोलते हैं। कोई भी डेटा है, कितना भी डेटा है, लेकिन काफी डेटा आपके पूरे एनालिसिस को डिस्टर्ब करता है, तो वो डेटा आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि कौन सा वेरिएबल्स है, कौन सा रिस्पोंडेंट है जो मेरे डेटा को डिस्टर्ब कर रहा है। सो वो हो जाता है आउटलायर। अब मैं थोड़ा एमओएस पे बात करूं, एनालिटिकल मोमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। एमओएस में मैं आपको एक मेरा एमओएस के वर्कशॉप का एक स्लाइड दिखाता हूं। Can you see this slide? Yes, Yes, sir. Yes, देखो sir. ये एक ऐसा मॉडल आपको स्टडी करना है, राइट, कि भाई लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, राइट, कंपनी इंश्योरेंस क्यों परचेस करती है। तो इस ऐसे मॉडल में जो आपको रिसर्च करना है, तो आप थियरी निकालोगे। थियरी में से कहो कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन एक होता है, रिस्क कितना कवर करना है वो होता है, एटीट्यूड कितना है, वो सारी चीजें मिला के हमें एक रिसर्च करना होता है। तो आप कभी रिसर्च पेपर जब पढ़ोगे लिटरेचर रिव्यू में, तो सारी चीजें आपको एक फ्रेमवर्क के रूप में आपके सामने आएगी। अब देखो ये इस फ्रेमवर्क के पीछे इतने सारे डेटास हो गए, मतलब ये इसको मैंने इतने सारे क्वेश्चन से मेजर किया है। इस पर्टिकुलर एटीट्यूड को मैंने दो टाइप में डिवाइड किया। एटीट्यूड नंबर 1 उसके इतने क्वेश्चंस थे, एटीट्यूड नंबर 2 इसके इतने क्वेश्चंस थे, राइट। इंटेंशन उसके 6 क्वेश्चंस थे मेरे डेटा सेट्स में, राइट। रिस्क के 3 कंपोनेंट थे, एक में हर में 3-3 क्वेश्चन थे। ये सारे डेटा को यदि मुझे साइमल्टेनियसली एनालाइज करना है, एक ही क्लिक में यदि एनालाइज करना है, राइट, तो वो मैं एमओएस के थ्रू कर सकता हूँ, एनालिटिकल मोमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, जो अभी नेक्स्ट मंथ मेरा गोवा में एक वर्कशॉप है एमओएस पे। तो ये सारी जो टेक्निक्स है वो क्या करते हैं, आपके पूरे डेटा को एक साथ एनालाइज करके एक ऐसा रिजल्ट आपको दे देती है। पूरा रिजल्ट मतलब आपके सब हाइपोथेसिस में आ गए। देखो कोरिलेशन, 2 साइडेड एरो देख रहे हो आप, वो 2 साइडेड एरो है कोरिलेशन का। ये 2 साइडेड एरो कोरिलेशन का है, ये 1 साइडेड एरो जो है वो रिग्रेशन का है। तो ये सारा जो एनालिसिस है वो एक ही क्लिक में यदि करना चाहते हो तो वो हो जाता है हमें स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के थ्रू, ये पूरी चीज हो जाती है। समटाइम यू, अब काफी सारे क्या होता है ना, कभी रिसर्च रेडीमेड स्केल उठाते हैं, रेडीमेड मॉडल्स लिटरेचर में उठा के उसको एनालाइज करते हैं। तो एक पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो मॉडल्स आप ले रहे हो वो मॉडल काफी पास्ट में डेवलप हुआ होगा, कोई अदर कंट्री में डेवलप हुआ होगा, क्या वही मॉडल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है क्या, तो वो चीज आपको पहले चेक करनी होती है। उसका नाम उसका है मॉडल वैलिडिटी, कि मॉडल क्या वैलिड है। जैसे एक सर्विस क्वालिटी मॉडल है, परशुरामन ने डेवलप किया था 1983 में। अब समझो 40 साल पुराना मॉडल ग्रीस में डेवलप किया मॉडल आप 2024 में इंडिया में यूज कर रहे हो अपने रिसर्च में, कोई भी मॉडल, तो उसकी वैलिडिटी क्या है वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए हमें इसी सारी टेक्निक को यूज करना पड़ता है। याद रखो फिटनेस इंडाइसिस, ये उसका मॉडल वैलिडिटी इंडाइसिस है कि भाई ये गुडनेस, ये मॉडल कितना फिट है आपके इंडिया में। तो ये सारे रिजल्ट्स जो आपको जनरेट करने होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव आपके रिसर्च का है, तो वो हम एमओएस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कर सकते हैं, राइट। तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि एमओएस सीखना ही 2 दिन का टाइम होता है। बट बेसिक उसका जरूरत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एमओएस स्टैंड फॉर एनालिटिकल मोमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ऐसे कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाले मॉडल्स है, उसका यदि हमें कुछ करना है तो हम उसका यूज करते हैं एनालिटिकल मोमेंट ऑफ स्ट्रक्चर का, राइट। जैसे मेरे पास एक मॉडल है सर्विस क्वालिटी लीड्स टू कस्टमर लॉयल्टी इज मॉडरेटेड बाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऐसा एक मॉडल है, उसको यदि मुझे एनालाइज करना है तो मुझे एमओएस की जरूरत पड़ेगी। सो by this way you can have different types of analysis for your research.
कुछ भी आपको यदि क्वेरीज हो, कंफ्यूजन हो, राइट, यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम फॉर एनी पर्पस, राइट, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गेट बैक टू यू। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिया गया है, सो यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। ठीक है, क्योंकि 1-2 घंटे में सॉफ्टवेयर सीखना इज नॉट पॉसिबल, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई द सॉफ्टवेयर इज मीन फॉर। सॉफ्टवेयर कोई भी हो, एनालिसिस सेम ही होने वाला है, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, गार्बेज इन गार्बेज आउट, right? So Gaurav sir, thank you very much for giving me an opportunity to discuss with this researcher, learned researcher, and we hope in near future इस सॉफ्टवेयर नाम एमोस है, एमोस, AMSO, एमोस। So any questions? You may ask. Yes, sir. Bhuyan, SK Bhuyan, you can ask the question. Sir, first of all, thank you very much, sir. Sir, actually, I am also working in statistical modeling of groundwater, sir. Sir, so, sir, बहुत इम्पोर्टेंस है सर ये सॉफ्टवेयर का मेरे लिए, सर। तो इसमें सर एक्चुअली एक बात है सर, इसमें सर प्राइसिंग इंक्लूडेड है, तो सर इसका कोई ऑल्टरनेट सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सर हम देख सकते हैं सर? कुछ मिल जाए इसका क्रैक वर्जन भी पर्सनल यूज के लिए, यू कैन हैव इट, राइट। उसके आप यदि पर्सनल यूज के लिए आप सीखना के लिए चाहते हो, जो उसका फ्री वर्जन 14 डेज के लिए अवेलेबल है, बट उसके पर्सनल यूज के लिए आपको क्रैक वर्जन मिल जाएगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग, बट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस यू मे हैव अ क्रैक वर्जन ऑफ एमओस एंड एसपीएसएस बोथ। सर एक्चुअली वो थीसिस पब्लिकेशन में सर इथिकल प्रॉब्लम सर कुछ आ सकता है इसमें सर, अगर मैं क्रैक वर्जन अगर यूज कर रहा हूँ तो? ऐसा सच देयर इज नो एनी इंडिकेशन इन आउटपुट के ये कौन से सॉफ्टवेयर क्रैक से किया है या उसे किया हुआ है। ओके सर, थैंक यू सर। बट एक चीज आप थोड़ा ऑन सेफ साइड आप रखना कि whenever you are using this kind of crack software, you switch off your internet, right? Otherwise it will catch by the company के इस सिस्टम में ये क्रैक वर्जन चल रहा है, तो जब भी आप ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करो तो आपके इंटरनेट को ऑफ रखा करो। ओके, थैंक यू सर। या यस, Charmi, you can unmute. Yes, sir. Sir, my question is again related to the factor analysis. My title includes two things, sir. To know the perception and preference of investors for exchange traded funds, and to have a comparative study of ETFs with the index fund. So I just want to know if for the perception and preference, will I be able to use the factor analysis? Is it a suitable method? The applicable of factor analysis depends on how many variables you have, right, and how much sample you have. आपके पास कितना सैंपल है और कितने वेरिएबल्स है, उस पे ये डिपेंड करता है कि आप फैक्टर एनालिसिस यूज करें। उसमें आता है सैंपल एडिक्वेसी टेस्ट, राइट? तो बार्टल्स सैंपल एडिक्वेसी टेस्ट आप रन करोगे, then it will tell you कि whether the factor analysis is suitable to your data sets or not. तो तब आपको वो जब आपके पास एक्चुअल डेटा होगा तब आपको पता चलेगा कि फैक्टर एनालिसिस इज एप्लीकेबल है या नहीं। Okay, sir. Okay, thank you, sir. थैंक यू। Prabhu Singh. जी सर, प्रणाम सर। मुझे Prabhu Singh, you can unmute and you can ask if you want. हाँ सर, मैं फैक्टर एनालिसिस के बारे में पूछना चाहता हूँ सर कि सर जब फैक्टर एनालिसिस बनाते हैं तो पहले जब कोई भी टूल बनाते हैं तो कंपोनेंट बनाते हैं, उस कंपोनेंट में स्टेटमेंट बनता है सर। तो कंपोनेंट का जो हम फैक्टर लोडिंग फाइंड करते हैं कि उसके स्टेटमेंट का फाइंड करते हैं? मैं समझा नहीं सर। जैसे कोई भी टूल बनाना, हाँ सर, फैक्टर एनालिसिस फाइंड करना है तो पहले हम लोग टूल बनाते हैं, टूल में उसका पहले कंपोनेंट बनाते हैं, उसके घटक बनाते हैं, घटक बनाने के बाद हम विधान बनाते हैं। विधान बनाने के बाद फिर जब हम आइटम एनालिसिस कर लेते हैं उसमें जो 40-50 स्टेटमेंट होते हैं वो आए मेरे, तो हम कंपोनेंट का फैक्टर लोडिंग फाइंड करेंगे कि स्टेटमेंट का करेंगे? देखो, फैक्टर एनालिसिस में आपको जब रोटेटेड कंपोनेंट्स मैट्रिक्स शो होता है, राइट, मैट्रिक्स में कंपोनेंट 1 है, उसमें समझो 4 स्टेटमेंट है, 4 वेरिएबल आ रहे हैं। कंपोनेंट 2 है, उसमें 5 स्टेटमेंट आ रहे हैं। कंपोनेंट 3 है, उसमें 3 स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, राइट? तो आप
हर एक कंपोनेंट का रिस्पेक्टिव जो स्टेटमेंट्स है उसकी आप फैक्टर लोडिंग लोगे, यानी वो रिपोर्ट करोगे, राइट। एंड वन मोर थिंग, फैक्टर एनालिसिस इज नॉट यूज्ड फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कीप इन माइंड, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग टेक्निक नहीं है। फैक्टर एनालिसिस इज अ डेटा रिडक्शन एंड थियरी डेवलपमेंट टेक्निक। यदि आप उस तरह का कुछ एनालिसिस करना चाहते हो कि मैं 10 क्वेश्चन को 3 कैटेगरी या 3 कंपोनेंट में डिवाइड करूं, तब आप उसको कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, राइट। तो उस तरह से आप उसकी जो एक्चुअल वैल्यूज है वेरिएबल्स की वो यूज करोगे, वो भी रोटेटेड कंपोनेंट्स मैट्रिक की ही। लेकिन सर प्रॉब्लम तक कंफ्यूज मैं यहाँ पे ये हो रहा हूँ कि जब हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम बच्चों से डेटा लेंगे तो स्कोर जो मिलेगा वो स्टेटमेंट पे मिलेगा। तो जैसे 10 स्टेटमेंट मेरे हैं तो हर स्टेटमेंट का मिला, उसके बाद फिर मैंने कोरिलेशन फाइंड करूंगा सर। तो कोरिलेशन तो स्टेटमेंट का निकल रहा है, तो कंपोनेंट का कैसे हो रहा है सर, वही कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। तो मैं क्विकली आपको फैक्टर एनालिसिस दिखा दूं, क्विकली, वेरी क्विकली। जी सर, जी सर। हेलो, मेरे पास एक डेटा फाइल है, आप देख रहे हो, हाँ स्मोकिंग सर की। देख रहा हूँ। इसमें मैंने हाँ सर क्वेश्चन देख रहा हूँ। स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या किया, उसको पूछा व्हाई पीपल स्मोक, कि भाई मुझे उससे मेनली फील होता है, मेरा स्ट्रेस रिलीज होता है, राइट, मुझे टेंशन रिलीज होता है। तो मैं व्हाई पीपल स्मोक उसका मैंने रिसर्च किया और उसका मैंने डेटा कलेक्शन किया। ऐसा एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ठीक है। अब मैंने उसका जो एनालिसिस जब करूंगा मैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जी सर। वो क्या पूछ रहे हो कि उसके बाद क्या करना है? जी सर। ठीक है, देखो अभी ये मेरा फैक्टर एनालिसिस है, ठीक है। मैं एनालाइज में गया, डायमेंशन रिडक्शन में गया, फैक्टर्स किया, 10 क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किए। यहाँ पे मैंने सैंपल की एडिक्वेसी चेक की, एक्सट्रैक्शन में एज इट इज रहने देता हूँ, नॉट डूइंग एनीथिंग। रोटेशन में मैं वेरी मैक्स लेता हूँ, राइट। ऑप्शन में शॉर्ट बाय साइज करके यहाँ पे 0.50 कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा हो गया है फैक्टर एनालिसिस, आ गया रिजल्ट आपके सामने है, जी सर। राइट। हाँ आपको सर, ये टेबल, ये तो टेबल है सर, यही समझना है सर खाली। ये जो रोटेटेड टेबल टेबल, बनना है, हाँ सर ये समझना है सर। बस इसमें देखो कंपोनेंट नंबर 1 है, उसमें इतने सारे स्टेटमेंट बिलोंग कर रहे हैं। कंपोनेंट 2 हाँ है, सर। उसमें ये 3 क्वेश्चंस बिलोंग कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर कंपोनेंट 3 है, इसमें ये 2 क्वेश्चंस बिलोंग कर रहे हैं, 2 स्टेटमेंट्स, राइट। तो जी आपको सर। क्या करना है, ये जी सर। 5 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट को मिला के कोई पर्टिकुलर एक वर्ड्स बनाना या फ्रेज बनाना है जो उसको रिफ्लेक्ट कर पाए। जैसे आप देखो, मैंने अभी बनाया कि मैं 5 स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है ना, वो इस तरह से मैंने किया है कि भाई आप उसमें से वो क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, राइट। तो इस तरह से आप उसको, जैसे ये फैक्टर आ गया आपका व्हाई पीपल स्मोक, राइट। तो उसमें से आपको आंसर्स निकालने हैं कि आप ये 5 जो स्टेटमेंट है उसका ब्रीफ में क्या एक्सप्लेनेशन होता है। ये जो 5 स्टेटमेंट है, ये 2 क्वेश्चन क्या इंडिकेट करता है, ये 3 क्वेश्चन क्या इंडिकेट है, तो तीनों मिला के आपको एक वर्ड्स बनाना है जो उसको समराइज करता है। मतलब क्या होगा, 10 सेंटेंस के 3 वर्ड्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। जी सर। जी। हाँ, तो यदि आपको, यदि भी इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, आपको मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, जो भी क्वेश्चन है मैं आपका सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। जी जी, श्योर सर, श्योर सर, श्योर सर। थैंक यू सर।
Thank you, sir. Thank you. Yeah, any questions? Prabhu Singh, done na? I think, sir, nobody now have question because કોઈ હાથ raise નથી કર્યો. Okay. અને બહુ જ સાહેબ ડિટેલ પ્રેઝન્ટેશન રહ્યું અને બધે વિદ્યાર્થીઓ કોમેન્ટ અને એના ઇમોશન્સ થી એક્સપ્રેસ કરી રહ્યા છે સાહેબ. તો સાહેબ ખૂબ ખૂબ આભાર પહેલા તો કે પોસિબલ નહોતું આપના માટે ને આપને મતલબ એ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી અને બસ સાહેબ તમારી અનુમતિથી હવે આપણે સેશન ક્લોઝ કરીએ સર. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. See you. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ કે આજે આપણે ઓમ બ્રેક હતો પણ આપણે બધે રહ્યા અને બહુ જ સારી રીતે લેક્ચર પૂરું થયું અને હવે બધે આપણે મીટિંગ એન્ડ કરીએ છીએ લીવ કરી શકો છો. થેન્ક યુ સર. Thank you, sir. Thank you.